So, good evening, friends. Good evening, sir. Good कैसे हैं आप evening, लोग? sir. कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वीनियंट हैं? चैट बॉक्स में यस कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फॉर बोथ द लैंग्वेज, फॉर इंग्लिश एंड हिंदी. Actually, the PPT is in English and we'll try to explain the things in Hindi because PPT is already in English and I have almost written all the things. So if anything is not understandable or not getting, you can ask also. And the things are written in English. And we'll try to explain the things in Hindi and English both. Okay. So let's start. So first thing I want to know, how many of you think that mm, spleen is responsible for all the things? Do you think whether any kind of diseases, somewhere some kind of thing is related to spleen? If the disease is related to pathogenic factors from externals, from internals, in my opinion, I think that if something is reaching you, if any disease is reaching you, any pathogenic factor is reaching you, that means the defensive chi is weak. And who creates the defensive chi? Spleen. If internally you are getting weak, means the spleen is weak. That is the main reason I have taken this class based on the spleen. Because I think most of the disease, if you know deeply about the spleen, you can easily find out the reasons behind where the spleen is lacking. And you, after treating your disease, you can treat your spleen so that you cannot get that disease again. And your body is having a good defensive chi and good health also. Because health is also maintained by the spleen. The digestion, the things you eat, everything is relating with the spleen. So let's start with the spleen. If anyone have any questions, can ask. The pathology, pathopsychology, physiology. Pathophysiology means the physiology and the pathology of the spleen. According to the TCM, how the pathology and how the physiology of spleen is affecting our body. First, where the spleen is existing. I think so. This all knows that spleen places over here. It's something the structure similar to the kidneys, but it have some differences and it has so many functions relating with our digestion, with our health, with our defensive systems, with most of the things. Even all the organs are getting nourished by this spleen. A very small organ in the other therapies, they even that does not care about this. Spleen, if there is problem, remove it. क्या होगा? खाली ब्लड नहीं बनेगा बस, इतना कह के इसको निकाल सकते हैं. बट इन TCM you have so many functions relating to spleen and connecting with the spleen. So let's start. The spleen. फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे.
फिर पैथोलॉजी और लास्ट में पैटर्न्स पे है। कोर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बाद में आप लोग ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको आंसर कर देंगे, क्योंकि टाइम मैंने 2 घंटे का ही रखा है। बट 8 to 10 days आई थिंक इट वॉन्ट बी इनफ, because it's a very, very vast topic. After getting this, you people will have a good knowledge about the spleen and the functions. And most of the disease and most of the protocols, or you can say that how you will treat and which protocol is related to that disease, how that protocol will work on that disease. You all will know in the last sessions or last 2 3 sessions, where we will be discussing about the patterns. Patterns can be differentiated from different writers, different prospects, but the basic pattern you should know, that what kind of pattern is required, minimum required for a spleen pattern, and what else you can add according to the other symptoms you are getting, or the patient which is getting something different from this. Suppose some patient is getting some disturbance related to stomach, but also having some nourishment problems in the muscles and bones. Then what you need to add that? That also I will explain and clarify how you will use this and how you can implement. So start with the physiology of the spleen. The spleen's main function is to assist the stomach digestion by transporting and transforming food essence. ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जैसे आप रॉ फूड खा रहे हैं, वो रॉ फूड से एसेंसेस को अलग करना, ब्लड को अलग करना, न्यूट्रिशन फैक्ट्स को अलग करना, वो सारी चीजें, वो हो गया उसका ट्रांसफॉर्मेशन। एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन नरिशमेंट फ्रॉम द फूड एंड सेपरेटिंग द अनयूजेबल एंड यूजेबल पार्ट ऑफ द फूड। मतलब फूड का यूजेबल पार्ट क्या है और अनयूजेबल क्या है। अनयूजेबल भी बहुत सारी चीजें आएंगी। द स्प्लीन इज द सेंट्रल ऑर्गन इन द प्रोडक्शन ऑफ ची फ्रॉम द फूड एंड ड्रिंक ingested. Ingested means something that has been taken into the body, especially from the mouth. Here we are not ingested is from taking the food or taking the substance or drink from mouth only, not from other part of the body or other part of the injectables. It is not included in ingest. Ingest ये word बहुत बार use होगा. So clarify this. This word means that you are taking that substance or you are taking that part from the mouth. Either it is medicine, either it is food, either it is drinkable or eatable. इट एक्सट्रैक्ट्स द फूड ची। यहां से क्या होगा, फूड ची निकलेगी, जिसे हम लोग गुची भी कहते हैं। आप लोग चाहे फूड ची कहिए या गुची कहिए, चाइनीज में इसको गुची कहते हैं, हम लोग इसको फूड ची नाम से समझते हैं कि ये फूड से जनरेट हो रही है ची, इसलिए फूड ची है। विच इज द बेसिक बेसिक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ची एंड ब्लड। अब फूड ची से ची भी बनती है और ब्लड भी बनता है। ची ऑटोमेटिक कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये भी अब लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट फूड ची से ही हमारी बेसिक ची भी बनती है और ब्लड भी बनता है। इनफैक्ट फूड ची प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लीन कंबाइंस विद द एयर। फूड ची जो स्प्लीन से बनती है वो एयर के साथ मिलके इन द लंग्स टू फॉर्म द गैदरिंग ची। जब लंग्स के साथ में वो एयर से मिल जाती है तब वो कहलाती है गैदरिंग ची, विच इटसेल्फ इज द बेसिक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रू ची। ट्रू ची बनाने या जैंग ची बनाने के लिए वो नेसेसरी है कि वो एयर के साथ में मिल जाए। फूड ची ऑफ द स्प्लीन इज ऑल्सो द बेसिक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड विच टेक्स प्लेस इन द हार्ट। फूड ची जो आपका अपर वार्मर में जाएगा, वहां पे कैसे काम करेगा, कैसे वो ब्लड में बनेगा, कैसे डाइजेस्टेबल में जाएगा, कैसे इनडाइजेस्टेड। जैसे अभी वर्ड ऊपर एक यूज किया था, यूजेबल एंड अनयूजेबल।
किसके लिए वो यूजेबल है, किस ऑर्गन के लिए वो अनयूजेबल है। बिकॉज द फूड ची एक्सट्रैक्टेड बाय द स्प्लीन इज द मटेरियल बेसिक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ची एंड ब्लड। जो फूड ची से बना, हमें मिला, जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट हुआ, वो क्या था? वो हमारे ब्लड, ची और ब्लड को प्रोड्यूस करने के लिए था। द स्प्लीन टुगेदर विद द स्टमक, यहाँ पे केवल स्प्लीन नहीं, स्टमक से आ रहा है, और इसी के साथ मिलके क्या होगा, इज ऑफन कॉल्ड द रूट ऑफ द पोस्ट हेवन ची। ये पोस्ट हेवन ची का रूट है। मतलब यहां से जो पोस्ट हेवन ची कौन सी होती है, जो हम लोग बर्थ के बाद, जो पेरेंटल नहीं मिली हुई है, जो बर्थ के बाद से जनरेट करते हैं हम बॉडी में डेली बेसिस पर या कंटिन्यूएशन पे, वो होती है हमारी पोस्ट हेवन ची, जो हमें बाय बर्थ नहीं मिली है, जो हमें डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। अगर वो हमारी जनरेट नहीं होगी तो हमारी पेरेंटल ची यूज होने लगेगी। तो हमें डेली एक्टिविटीज से वो चीजें, फूड से, अपने सिस्टम से वो चीज बना के रखनी है कि आपकी पेरेंटल ची जो है वो यूज ना हो, पेरेंटल ची या पेरेंटल एसेंस यूज ना हो, और आपकी पोस्ट हेवन ची का यूज होके सारी चीजें आपकी बनती रहें। Since the spleen is the central organ in the digestive system, it is often referred to as the granny, means where the grains are stored, जहाँ सारे एसेंसेस, सारी चीजें स्टोर रहती हैं। ग्रेनी एसेंशियल या ग्रेनी ऑफिशियल, जहां पर सारा, एक तरह से कह सकते हैं ये स्टोर रूम है, जहां पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। फ्रॉम होम द फाइव टेस्ट आर derived, और इन्हीं स्टोर रूम से हमें पांच टेस्ट जो होते हैं वो डराइव होते हैं, मतलब हमें मिलते हैं, हमें समझ में आते हैं कि वो पांच टेस्ट हैं क्या हैं। थोड़ा डीप में चलते जाएंगे धीरे धीरे, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर कहीं कोई नहीं समझ में आ रही कोई चीज तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों के माइक्स जो हैं अनम्यूट रखे हैं, तो अगर जेन्युइनली क्वेश्चन पूछना हो तभी अननेसेसरी कोई चीज शोर नहीं करिएगा। स्क्रीन डार्क है। Anyone else is getting the screen dark? No, sir, it is perfect. Okay. So the next thing, the founder of the Chinese Earth School, काफी पुराना स्कूल है ये चाइनीज का, जहाँ ली डोंग योंग was the first started placing the stomach and spleen at the center of physiology and pathology, advocating for tonification and regulation of stomach and spleen as the main treatment principle। जहां पर ली डोंगयोंग ने फर्स्ट टाइम जो फाइव एलिमेंट थ्योरी थी, वहां पर स्टमक, स्प्लीन या ये को अर्थ एलिमेंट को सेंटर में रखा। सेंटर में रखने से क्या हुआ? सेंटर में रखने से उन्होंने एक चीज एडवोकेट, जो एडवोकेटिंग करी, वो उन्होंने कहा कि दलील दी कि स्टमक और स्प्लीन को टोन करना चाहिए किसी भी डिजीज में। क्योंकि कोई भी डिजीज में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें नरिशमेंट चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें ची चाहिए। वो सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? स्टमक स्प्लीन से। तो स्टमक स्प्लीन को तो हमेशा टोन करने की ही जरूरत है। तो यहाँ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया और बताया कि हमें स्टमक स्प्लीन की पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों पार्ट पे ही काम करके पता चलता है कि इन लोगों को हमें हमेशा टोन करना चाहिए। In this important work, discussion on the stomach and spleen, he maintained that injury to the stomach and spleen was the origin of numerous disease। अगर स्टमक और स्प्लीन जो ओरिजिन है बहुत सारी डिजीज होने के, अगर वहां पर कोई इंजरी होती है इन दोनों में से किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी चीज में, तो हम कई सौ डिजीज के दायरे में आ जाते हैं। In his text states on the basic of deficiency determines to the spleen and stomach the 100 disease all arise from the debilitation, a state of weakness। मतलब स्प्लीन की वीकनेस की वजह से, ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक। अगर स्प्लीन और स्टमक वीक है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है,
सभी चीजें डिपेंड कहाँ से है, हमें ची कहाँ से मिल रही है, डिफेंसिव ची कहाँ से मिल रही है, सारी चीजें तो स्प्लीन स्टमक पे डिपेंड है। कोई सी भी डिजीज होगी अगर आपको, तो कोई ना कोई कारण तो इन्हीं में से होगा। So therefore, he comprehensively described the significance of the pathomechanism of spleen deficiency for diseases arising in the entire body. यहाँ पर हम लेकर आए हैं पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों को मिक्स करके पैथोमैकेनिज्म, जिसकी वजह से हमारी, चाहे पैथोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आई हो स्प्लीन स्टमक की, चाहे फिजियोलॉजी में, दोनों ही में अगर किसी में कोई डिस्टरबेंस आता है तो हमारे बहुत सारी डिजीजेस के कारण बन जाते हैं। ली डोंग योंग ऑल्सो हाईलाइटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टमक एंड स्प्लीन ऑन द ओरिजिनल ची, दैट इज युआन ची। Although related to the kidney, the original chi is replenished by the stomach and spleen, and depletion of stomach and spleen in the chronic disease involves a decline of the original chi. जो लोग करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टिक लगा रहे हैं, उसको ना करें, नहीं तो मैं सारी चीजें डिसेबल कर दूंगा तो फायदा नहीं है उससे कोई। तो प्लीज उसको डिस्टरबेंस ना करें। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है बोल के भी पूछ सकते हैं, मैसेज बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। देन functions of spleen. So here are the so many functions where the spleen is responsible for the functions which are handled under the guidance or under the spleen. It governs the transformation and transportation. अभी इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। It governs the transportation and transformation. It controls the ascending of chi. Why the ascending of chi is important? It controls the blood. It controls the muscles and forelimbs. It opens in mouth and it manifests in the lips. It controls the saliva. It controls the rising of chi. Why the rising of chi? It houses the intellect. It affects the pensiveness and few more things. How the tastes are developed and how the taste affects the organs and give you the overview of the functioning which is hampered or not. So these are some of the functions which are handled by the spleen. The spleen function of the transformation and transportation concerns the food essence. एक तो फूड एसेंस का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फ्लूइड्स का होता है। दिस फंक्शन आल्सो हैज द टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड और एसेंस, फूड एसेंस और ची का, और दूसरे में होता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्लूइड्स का। फूड एसेंस और ची एक अलग पार्ट है, फ्लूइड्स अलग पार्ट है। ब्लड में हमारे जब हम बात करते हैं ब्लड में फ्लूइड डेफिशिएंट है, यिन डेफिशिएंट है, ब्लड डेफिशिएंट है, वो सारी ही चीजें अलग अलग हैं। कैसे हैं ये अभी डिटेल में हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। द स्प्लीन ट्रांसफॉर्म्स द इंडेस्टेड फूड एंड ड्रिंक टू एक्सट्रैक्ट द ची फ्रॉम इट। स्प्लीन ही ट्रांसफॉर्म करता है जो हम खाते हैं माउथ से या पीते हैं उसको ची के फॉर्म में या एसेंसेस के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड द फूड ची एंड इज द बेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ची एंड ब्लड। यहीं से ब्लड या ची का प्रोडक्शन होता है। वंस द फूड ची इज फॉर्म, द स्प्लीन ट्रांसपोर्ट्स दिस एंड some other refined part of food called the food essence। कुछ refined part जो हम फूड का लेते हैं, सपोज हमने कुछ एसेंस टाइप की चीज ली जो फूड का एसेंस ही हुआ, वो डायरेक्टली एसेंस की तरह ही यूज होगा। या फूड में से कुछ रिफाइंड पार्ट था जो आपका डायरेक्टली निकल आया, वो डायरेक्टली यूज हो जाएगा टू द वेरियस ऑर्गन एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैसे होता है इस डायग्राम को समझें। हमने कुछ खाया, स्प्लीन पे आया, यहां से फूड ची गया या गूची में आया, गूची से स्प्लीन से लंग्स में गया, स्प्लीन से ही लंग्स में गया, लंग्स के साथ एयर ची में मिला, एयर ची के साथ गैदरिंग ची बनी, और यहाँ फूड से भी गैदरिंग ची में आया, ये गैदरिंग ची बनी। अभी इसको आगे डिटेल में समझेंगे शॉर्ट शॉर्ट करके अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ पे हमने ओरिजिनल ची मिलाई,
ओरिजिनल ची मिलने के बाद यहाँ पे ट्रू ची बनी। ट्रू ची हमारे दो पार्ट में डिवाइड हुई, न्यूट्रिटिव जो हमारे बॉडी या ऑर्गन्स को नरिशमेंट देगी, और दूसरा हुआ डिफेंसिव ची जो हमारी बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम स्किन मसल्स में रहेगी। तो कैसे कैसे होगा ये भी आगे देखते हैं, कैसे बनेगा। So this package describes the spleen role of separating the usable and unusable part of food and directing the food chi upward to the lungs to combine with the air to form the gathering chi। तो सबसे पहले क्या हुआ, यूजेबल और अनयूजेबल। जो हमारा अनयूजेबल था वो उसके साथ में ऊपर गया, अनयूजेबल वाला फूड में गया, यूजेबल वाला ऊपर गया जो डायरेक्ट एसेंस में था, और एयर ची के साथ मिलकर गैदरिंग ची बनी। स्प्लीन के साथ जो अनयूजेबल पार्ट था, जो हमारा फूड का थिकन पार्ट था, टर्बाइड पार्ट था, वो आया हमारे फूड में। फूड ची यहाँ से इंटेस्टाइन वगैरह में होता हुआ जब जाएगा तब वो आगे बनेगा, अभी उसका प्रोसेस आपको आगे बताते हैं कैसे होगा। वहां से वो बना और यहाँ से डायरेक्ट मिला जाके, और यहाँ से इनडायरेक्टली। फिर आते हैं एंड टू द हार्ट टू फॉर्म ब्लड। यहां से जो गया लंग्स पे आया, लंग्स के साथ एयर ची मिली, हार्ट में आया, हार्ट से ब्लड के लिया गया। द वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मूवमेंट डिस्क्राइब द रिफाइंड पार्ट ऑफ द टू द लीवर। यहां से रिफाइंड होगा वो लीवर के पास जाएगा, द अनरिफाइंड टू द हार्ट एंड द रिफाइंड अपवर्ड टू द लंग। जो रिफाइंड हुआ वो लंग्स में गया, लंग्स से आपका ब्लड में आ गया, हार्ट में आके ब्लड में आया। ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्प्लीन। ये पूरा प्रोसेस जो हुआ वो स्प्लीन के ही कंट्रोल में हुआ। अभी ये बड़ा इमेज है, ये छोटी छोटी इमेजेस में डिवाइड होता जाएगा, तब आपको इजीली समझ में आता जाएगा कि बीच बीच में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए, कहाँ ये क्या चेंज हुआ है। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर मॉडल होता है जहां से फूड ची गई और ब्लड बना, या फूड ची गई वो हमारी गैदरिंग ची या एयर ची या फूड ची से कैसे कन्वर्ट हुआ। तीसरा आता है हमारा द स्प्लीन। स्प्लीन स्प्लीन से फूड ची आया, फूड ची से हमारे दो पार्ट में गया, एक लंग्स में गया जो अपर पार्ट में गया, एक हार्ट में आया। लंग्स में गया उसमें एयर ची मिली तो वो गैदरिंग ची बन गई, जो हार्ट में गया वो ब्लड में आ गया, ब्लड में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कैसे हुआ वो अभी अभी डिटेल में भी आता जाएगा धीरे धीरे करके बाकी चीजों के संग। द स्प्लीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एसेंस इज क्रूशियल टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ ची एंड ब्लड। अगर हमारा स्प्लीन का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा ची और ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ची हमारी जो बन रही है वो ऊपर गैदरिंग ची बन रही है, नीचे ब्लड बन रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे ब्लड बना। इफ दिस फंक्शन इज नॉर्मल द डाइजेशन विल बी गुड एंड गुड एपिटाइट, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन एंड रेगुलर बाउल मूवमेंट। अगर ये पार्ट हमारा सही होगा तो क्या होगा, हमारी भूख अच्छी होगी, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, जो हम खाएंगे उसमें से न्यूट्रिशन सही एब्जॉर्ब होंगे, और हमारा बॉवल मूवमेंट भी सही होगा। इफ दिस फंक्शन इज इम्पेयर्ड, अगर यहीं पे गड़बड़ है, देयर मे बी ए पुअर एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, डाइजेशन सही नहीं होगा, एबनॉर्मल डिस्टेंशन होगा, या स्टूल लूज होगा। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी के बीच में भी इम्पेयरमेंट की वजह से। अगर स्प्लीन और फूड ची बनने के बीच में है तो अलग प्रॉब्लम होगी, लंग्स से रिलेटेड है तो अलग, लंग्स और फूड ची के बीच में। अगर आपका फूड ची और हार्ट के बीच में है तो अलग प्रॉब्लम आएगी। इसमें अगर एयर प्रॉपर नहीं मिल रही है तो अलग तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये अभी हम लोग जैसे जैसे इसका बाइफर्केशन करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का कैसे होगा, अभी हमने बात करी थी फूड की, अब बात कर रहे हैं फ्लूइड की। अपार्ट फ्रॉम गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ द वेरियस फूड एसेंसेस एंड द ची, द स्प्लीन ऑल्सो कंट्रोल्स द ट्रांसफॉर्मेशन, सेपरेशन एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। द स्प्लीन सेपरेट्स द यूजेबल एंड अनयूजेबल पार्ट। स्प्लीन ही सेपरेट करेगा यूजेबल और अनयूजेबल को, जो हमने इंजेस्ट किया मतलब माउथ से खाया। द क्लियर पार्ट गोज अपवर्ड, जो क्लियर होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो प्री डाइजेस्टेड टाइप की चीजें होंगी वो डायरेक्ट अपवर्ड जाएंगी लंग्स में, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्किन एंड द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड मसल्स वेयर अवर डिफेंसिव ची resides, and the turbid part
goes downwards to the intestine where it is further separated. और जो हमारा अनयूजेबल पार्ट था, जो हम यहाँ पे अनयूजेबल कह रहे थे, वो हमारा हुआ टर्बाइड पार्ट या थिक पार्ट। टर्बाइड मतलब थिक, थिकन टाइप का। जैसे हमारा एक नॉर्मल फ्लूइड होता है पतला, और एक थिकन फ्लूइड होता है। तो थिकन वाला जो फ्लूइड होगा वो सेपरेट होके इंटेस्टाइन में जाएगा कि वो उसका डाइजेशन इंटेस्टाइन में हो। तो अपर बर्नर में क्या, और मिडिल बर्नर और लोअर बर्नर में, मिडिल बर्नर में हमारी स्प्लीन आ गई। स्प्लीन ने ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन करके फूड ची बनाई। फूड ची से जो हमारा प्योर पार्ट था वो चला गया लंग्स में, लंग्स से चला गया स्किन में, स्किन और मसल्स के बीच के एरिया में। या जो हमारा ब्लड फॉर्म होना था उस पार्ट पे चला जाएगा आगे, ब्लड और हार्ट के केस में जाके। और जो हमारा यूज अनयूजेबल था वो हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा, ताकि उसका फर्दर बाइफर्केशन हो जाए, फर्दर सेपरेशन हो जाए, और उसके अंदर से एनर्जी या उसके अंदर से ब्लड फॉर्म के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो एक्सट्रैक्ट या एब्जॉर्ब हो जाए। और जो रिमेनिंग पार्ट जो लास्ट में बचेगा, जिसमें से कुछ नहीं निकल सकता है, वो एक्सक्रीशन के लिए रेडी हो जाए। बहुत सारी लाइनें मैंने करी हुई हैं ताकि आप लोग इजीली चीजों को समझ सकें। इफ द स्प्लीन फंक्शन इज नॉर्मल, द ट्रांसपोर्टेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड विल बी नॉर्मल। तो फ्लूइड का नॉर्मल फंक्शन भी काम करेगा। If it is impaired, the fluid will not be transformed and transported properly, and many accumulated to form dampness and flame and cause edema. एडिमा, डैम्पनेस या फ्लेम, इन सब का कारण जो है वो स्प्लीन है। स्प्लीन के ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन ना होने से ये फ्लेम क्रिएट होता है, या डैम्पनेस। डैम्पनेस वही है जो टर्बाइड हम कह रहे थे, वो भी डैम्पनेस ही एक तरह की। उन्हीं से ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। अगर उनका मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनका स्टेट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। द इम्प्लीकेशन हियर इज दैट द स्प्लीन मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड व्हेन देयर इज डैम्पनेस, फ्लेम और एडिमा। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आपको नजर आ रही है तो आपको स्प्लीन को ट्रीट करना ही पड़ेगा। Moreover, the spleen is also easily affected by the external dampness, which may impair its function of transportation and transformation. स्प्लीन हमारी बहुत जल्दी इफेक्ट भी होती है अगर आप कहीं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में या एक्सटर्नल डैम्पनेस की जगह पर हैं जहां पर डैम्पनेस ज्यादा है, तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको मिलता है बॉडी में बहुत जल्दी। तो इसको कैसे सही करेंगे? तो क्लिनिकल एक टिप है, स्प्लीन ची डेफिशिएंसी यहां पर लीडिंग टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। अगर स्प्लीन ची डेफिशिएंसी की वजह से कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, इज वन ऑफ द कॉमन पैटर्न एनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस। स्प्लीन ची डेफिशिएंसी बहुत सारे लोग होंगे जो टंग पे देख लेते होंगे। अगर नहीं भी देख पाते हैं तो अभी टंग की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप लोग उसमें ज्वाइन करके भी जान सकते हैं। यहां से आप समझ जाएंगे कि अगर स्प्लीन ची डेफिशिएंसी है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करना है। ST36 और स्प्लीन 6, इन दो को सिंपली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये, आर सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन टू टोनिफाई द स्प्लीन ची इन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप इन दोनों को तो ले ही लें। ST36 टोन करना है, SP6 टोन करना है रिलेटेड टू डाइजेस्टिव इश्यूज, या अगर आपको स्प्लीन चीज से रिलेटेड कोई इशू है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। लिपोमा, लिपोमा इज ए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बट स्टिल यू कैन डू सो मेनी थिंग्स ऑफ लिपोमा विद द स्प्लीन ऑल्सो। अभी आगे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि लिपोमा क्रिएट कैसे होता है और कैसे उसको सही करना है। बहुत सारी डिजीजेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं स्प्लीन की डेफिशिएंसी से दूसरे ऑर्गन में इफेक्ट आया, जिसकी वजह से आपको कोई डिजीज क्रिएट हुई, तो रूट कॉज आपको फिर भी जाके मिलेगा स्प्लीन ही। इसीलिए मैंने ये स्प्लीन टॉपिक ऐसा लिया है। फिर आता है नेक्स्ट वन इज कंट्रोल्स द असेंडिंग ऑफ द ची।
कैसे ची को असेंड करने में हेल्प करता है, कैसे असेंड करने से क्या होता है ची को, और अगर असेंड नहीं होती है तो क्या होता है, ऑर्गन्स आपके कैसे अपनी जगह पर ही बने रहते हैं, उसके पीछे स्प्लीन का क्या रोल है। The spleen directs the food chi upward to the lungs to combine with the air to form the gathering chi, and to the heart to form the blood. फूड ची ऊपर जाती है, लंग्स में कंबाइन होती है एयर के साथ, जिससे गैदरिंग ची बनती है। गैदरिंग ची आपकी आगे जाती है हार्ट में, जिससे ब्लड बनता है। अभी पीछे आप लोगों ने फिगर देखी भी थी। The various transformation and the movement described in the passage quoted above, that is the refined part to the liver, रिफाइंड पार्ट जो होगा वो लीवर के पास जाएगा, अनरिफाइंड पार्ट जो होगा वो हार्ट के पास। द रिफाइंड अपवर्ड टू द लंग्स, रिफाइंड होगा वो ऊपर जाएगा लंग्स तक, आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द असेंडिंग ऑफ द स्प्लीन ची। ये सारी चीजें डिपेंड हैं स्प्लीन ची के अपवर्ड जाने में, मतलब असेंड करने में। अगर ये असेंड नहीं होगी तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। द स्प्लीन एंड द स्टमक आर एट द हार्ट of the middle burner. In the center of the chi mechanism, being in the center, the stomach and the spleen control the movement and the direction of chi in all the burners. स्टमक और ची का कंट्रोल, मूवमेंट, डायरेक्शन ऑल बर्नर्स में अवेलेबल रहता है। दे आर लाइक ए वाइटल मोटरवे, फ्री वे हैं कहीं भी जाने के लिए, इंटरलिंक that is essential to the proper movement, direction and the transformation of chi in all the three burners. कैसे हैं भी आगे देखते हैं। असेंडिंग ऑफ द ची के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है हमारा रिलेटेड टू ची फूड एसेंस और फ्लूइड, और दूसरा है हमारा लिफ्टिंग ऑफ द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को कैसे लिफ्ट रखता है, कैसे लिफ्ट करेगा ऑर्गन्स। हमेशा ऑर्गन्स के लिए हम लोग कहते हैं ना, ऑर्गन अगर प्रोलैप्स हो रहे हैं या ऑर्गन अगर गिर रहे हैं या नीचे डाउनवर्ड्स हो रहे हैं, तो वो उन ऑर्गन के पीछे स्प्लीन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, स्प्लीन उनको कैसे होल्ड कर रही है, कैसे उन्हें लिफ्ट कर रही है। तो ascending of the spleen chi in relation to the chi and food essence and fluid, ये हमारा जो 1.17 वाला डायग्राम जो हम लोगों ने पीछे इसमें देखा, तीनों बर्नर में कंट्रोल कैसे है। तो स्टमक ये आपका यांग और यिन और यांग ऑर्गन मिडिल बर्नर में है। एक अपर में जा रहा है जो आपकी एसेंट्स टू ट्रांसफॉर्म द ची एंड फ्लूइड, ची और फ्लूइड को ऊपर ट्रांसफर कर रहा है लंग्स और हार्ट में। और नीचे क्या हो रहा है, जो आपका टर्बाइट था या जो डिसेंट द ट्रांसफॉर्म ऑफ ची और फ्लूइड, जो आपका टर्बाइट टाइप का था, जो आपका डैम टाइप का था, जो आपका डाइजेस्ट प्योर नहीं था या अनयूजेबल था, वो आपका इंटेस्टाइन में नीचे लोअर बर्नर में जा रहा है। तो द स्प्लीन फंक्शन of transformation and transportation is linked to the ascending of spleen chi। ये हमारा पूरा स्प्लीन ची के ascending फंक्शन पे डिपेंड करता है। इन ए स्पेसिफिक सेंस स्प्लीन ची ascends, स्प्लीन ची जो होती है वो ascend करती है, ट्रांसपोर्ट ची एंड फूड एसेंस टू द लंग्स, ची और फूड एसेंस को लंग्स तक ले जाता है, वेयर इट फॉर्म्स द गैदरिंग ची आफ्टर कंबाइनिंग विद द एयर ची। एयर ची के साथ कंबाइन होके गैदरिंग ची में बनता है। चाइनीज बुक्स क्या कहती हैं, द असेंडिंग ऑफ स्प्लीन ची इज ऑलवेज लिंक्ड टू द नोशन ऑफ क्लियर, दैट इज द स्प्लीन कैरीज द क्लियर पार्ट ऑफ द फूड एसेंस एंड ची एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड अपवर्ड टू द अपर बर्नर। जो क्लियर पार्ट मतलब जो यूजेबल था या जो हमारा क्लियर एसेंस था, जो लंग्स में जाने के लिए केपेबल था, जो प्योर एक्सट्रैक्ट पार्ट था, वो स्प्लीन डायरेक्ट लंग्स को भेज देती है ब्लड या ची के फॉर्मेशन के लिए। तो वो आपका अपर पार्ट में चला जाता है। और फ्लूइड्स का क्या होता है जो बचता है, वो असेंडिंग ऑफ द ची इन रिलेशन टू द ची, फूड एसेंसेस एंड फ्लूइड्स, वो इन ए जनरल सेंस नॉर्मली क्या होता है, द असेंडिंग ऑफ द स्प्लीन ची इंक्लूड्स ऑल द मूवमेंट ऑफ स्प्लीन ची, सारे इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड नॉट जस्ट द अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द लंग्स। केवल ऊपर का ही नहीं, नीचे के लिए भी। इन दिस सेंस द असेंडिंग ऑफ द स्प्लीन इज एसेंशियल फॉर ए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
फूड के, ची के, फ्लूइड्स के, सभी के। द असेंडिंग ऑफ स्प्लीन ची इज कोऑर्डिनेटेड विद द डिसेंडिंग ऑफ द स्टमक ची। अब यहां पर आ जाती है आपकी एक ची अगर अप जा रही है, एक में अगर अप मूवमेंट मतलब यांग मूवमेंट हो रहा है तो दूसरे में यिन मूवमेंट भी होगा। अगर यिन यांग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा तो एक चीज आपकी यिन, एक चीज यांग, एक मूवमेंट ऊपर जा रहा है, एक मूवमेंट नीचे आ रहा है, तो दोनों बैलेंस करेंगे। तो यहां पर जो आपका स्टमक ची है वो डिसेंडिंग मूवमेंट पे आती है। स्प्लीन ची असेंड्स टू द लंग्स एंड हार्ट एंड स्टमक ची डिसेंड्स टू इंटेस्टाइन। स्टमक ची जो होती है वो आपके इंटेस्टाइन की ओर डिसेंड करती है। दिस coordination of ascending of the spleen chi and descending of the stomach chi is essential for the production of chi and blood in the middle burner। इससे हमारा मिडिल बर्नर में ब्लड और ची का फॉर्मेशन होता है। स्प्लीन ची गोज अप, स्टमक ची गोज डाउन। स्प्लीन ची अप जा रही है, स्टमक ची नीचे आ रही है। क्लियर हो रहा है या सब ऑल क्लियर हो रहा है? क्लियर है सर। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने बहुत बार रिपीट करी हैं ताकि बीच बीच में आप लोग छोटे छोटे टर्म्स भूल ना जाएं। सर इसमें क्लियर और रिफाइंड दोनों सेम है क्या? सेंसेस हाँ, मतलब। क्लियर एंड रिफाइंड बोथ आर सेम। तो ऊपर सिर्फ हार्ट में अनरिफाइंड जाता है एंड लिवर और लंग्स में रिफाइंड जाता है, हाँ, तो इसका हार्ट मीनिंग क्या होता में है? हार्ट में अनरिफाइंड क्यों जाता है ये भी अभी आपको आगे मिलेगा, आप परेशान ना हो। हार्ट के पास प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों होते हैं ना। हाँ। अभी आगे कॉन्सेप्ट आएगा कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों उसके पास अनरिफाइंड जाता है, सब मिलेगा अभी। कि वो लंग से होते हुए हार्ट में जाएगा ना, तो हाँ, रिफाइंड ही होगा ना। हार्ट में जाएगा, रिफाइंड भी जाएगा और हार्ट में अनरिफाइंड भी जाता है। कैसे जाता है अभी आगे आएगा। ओके। Ascending of the spleen chi in relation to chi, food essence, and fluids. The coordination between the ascending and the spleen chi and the descending of the stomach chi is also essential for a proper movement of chi in the body during the digestion. So that the clear chi is directed upward by the spleen and the turbid chi downwards by the stomach chi, connects upward with the lungs and heart and downwards with the intestine, लीवर एंड किडनी। तो नीचे जो डाउनवर्ड्स आएगा वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी में। ओनली if these ascending and descending movement of the chi are coordinated can the clear yang ascends to the upper orifice and the turbid yin descends to the lower orifice। अगर ऐसा होगा तभी क्लियर यांग यहां पर यूज किया है, क्योंकि जो आपका प्योर एसेंस ब्लड के लिए जाता है, ची के लिए जाता है, वो दोनों ऊपर यांग मूवमेंट से जाते हैं और नीचे जो स्टमक से आपके आता है वो यिन मूवमेंट से आता है। ऊपर से कोई चीज यिन मूवमेंट के लिए आती है, नीचे से ऊपर यांग मूवमेंट के लिए जाती है, यांग मूवमेंट से। हालांकि ऊपर जो है वो यांग है और नीचे जो है वो यिन है। तो हम्म। कंफ्यूज मत होइएगा यिन यांग के कॉन्सेप्ट में। मूवमेंट यिन और यांग यहाँ पे डिफर करते हैं। Then, if the descending and the ascending movements are impaired, the clear yang does not ascend। अगर इम्पेयर मूवमेंट होगा तो क्लियर यांग ऊपर असेंड नहीं करेगा और रिफाइंड ची एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड कैन नॉट बी स्टोर्ड। जो रिफाइंड ची हमने प्रोड्यूस करी थी वो ऊपर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी और टर्बाइड ची बाहर नीचे से एक्सक्रीटेड नहीं हो पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। द असेंडिंग ऑफ स्प्लीन इन द रिलेशन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन को लिफ्ट कैसे करती हैं। द असेंडिंग ऑफ द स्प्लीन ची हैज another important functions as it serves to lift the internal organs to keep them in their proper place। लिफ्ट करके रखती हैं ऑर्गन्स को प्रॉपर प्लेस पर। द फेलिंग ऑफ दिस असेंडिंग मूवमेंट में कॉज द प्रोलैप्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अगर ये फेल होगा तो इंटरनल ऑर्गन्स प्रोलैप्स हो जाएंगे। अच्छा, अब ये ऊपर उठा के रखती है, स्प्लीन का काम होता है अपलिफ्ट करके रखना।
तो अपलिफ्ट अगर आपका सपोज किडनी है वो अपलिफ्ट हो रही है, तो अपलिफ्ट होते होते तो ये और ऊपर आ जाएगी, आपके नेक तक आ जानी चाहिए, होना चाहिए ना। तो इसको कोई हाँ। डाउनवर्ड मूवमेंट में भी रखता है कि नीचे की तरफ की ची मूवमेंट पे नीचे भी रखे, वो काम करता है स्टमक। हाँ। स्टमक चीज जो होती है वो यही काम करती है, ये काम भी करती है, ताकि दोनों ऑर्गन्स के अप डाउन दोनों तरह के मूवमेंट को रोक सके। अगर ऑर्गन्स अपलिफ्ट हो रहा है तो आपको स्टमक ट्रीट करना है, अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो आपको स्प्लीन को ट्रीट करना है। होपफुली समझ में आ गया होगा। हम्म। ऐसे तो अभी तो आगे भी डिटेल में है। हाउ द स्प्लीन कंट्रोल्स द ब्लड। ये बेसिक फंक्शंस ही हैं जो अभी मैंने हम लोगों ने पढ़े थे कि क्या क्या पढ़ना है। द स्प्लीन कंट्रोल्स द ब्लड। Control in this case has two distinct meaning. On the one hand, it means the spleen chi keeps or hold the blood in the vessels. मतलब एक तो blood vessels में blood को hold रखना. On the other hand, it means that the spleen plays an important role in the making of blood. और blood को दूसरी तरफ हो गया blood को बनाने का काम. The spleen is in charge of holding the blood together. Although it is chi in general that holds the blood in the vessels. वैसे तो ब्लड वेसल्स में ची होती है, वो होल्ड करती है। तो अभी आप लोग याद रखिएगा ये चीज भी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को होल्ड करने का काम ची रखती है, ची। हाँ। इट इज द स्प्लीन ची इन ए पर्टिकुलर दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। It is the spleen chi in particular that performs this function. The spleen function is keeping the blood in the vessels, is also closely linked to the ascending of the spleen chi. To control the blood implies an impairment of ascending of spleen chi. Spleen chi के impairment को भी control करने का काम, that the failure of the spleen chi to control the blood in how the spleen controls the blood. If spleen chi is healthy, blood will circulate normally and stay in the vessels. Circulate होगा proper, blood vessels में रहेगा. The spleen chi is deficient and not ascending properly, the blood may spill out of the vessel, resulting in hemorrhage. तो blood vessels से आपका blood बाहर आ जाएगा और hemorrhage, उसी को hemorrhage कहते हैं, वो हो जाएगा. The failure of the ascending of the spleen chi and in controlling blood normally cause the bleeding downwards. For example, ऐसे केस में क्या होगा, ब्लीडिंग डाउनवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल यूट्रस से, ब्लैडर से, इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग जो होगी वो डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगी, क्योंकि आपका स्प्लीन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है असेंडिंग करने में, उसको ऊपर उठाने में और होल्ड करने में. Besides controlling the blood and preventing hemorrhages, the spleen also plays an important role in making the blood. In fact, the spleen extracts the food chi from the food and this forms blood in the heart. एक मिनट होल्ड कीजिएगा. Besides controlling the blood and preventing the hemorrhages, the spleen also plays an important role in making it. In fact, the spleen extracts the food chi from food and this forms the blood in the heart with the assistance of the original chi from the kidney.
ये फूड ची से जो ब्लड लंग्स के थ्रू होके गया, वहां पे एयर ची मिली, इसके बीच का एक पार्ट मिसिंग था, वो था किडनी से ओरिजिनल ची का मिलना। ये जब किडनी से ओरिजिनल ची मिलेगी तब जाके ये ब्लड फॉर्म होगा हार्ट में। द स्प्लीन इज देयरफॉर द सेंट्रल एसेंशियल ऑर्गन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ ची एंड ब्लड। दिस इज अनदर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड द रूट ऑफ पोस्ट हेवन। इसीलिए इसको रूट कहते हैं पोस्ट हेवन ची का। दिस इज अनदर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड द रूट ऑफ पोस्ट हेवन ची। In this context, chi in the expression post heaven chi should be intended in a broad sense that includes the blood. अब इसमें और भी चीजें हैं, पोस्ट हेवन ची के साथ में ब्लड भी है। If we wish to tonify the blood, therefore we must always tonify the spleen. अगर हमें ब्लड को नरिशमेंट देना है, टोनिफाई करना है, तो हमें स्प्लीन को भी टोन करना चाहिए या करना पड़ेगा। आप दोनों ही चीजें कह सकते हैं। जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो आपके को समझ में आ जाएगा कि पड़ेगा या चाहिए। क्योंकि अगर आपको ब्लड Sir, को what do टोनिफाई, you, sir, what do you mean by tonify the blood? What does it mean? if your blood is not having the proper nourishment values, it's not only the hemoglobin. In the Western medicine, we only say about the hemoglobin. It's not the hemoglobin. It takes all the essential nutritions for all the essential organs, parts, joints, muscles, tissues, cells. All the nourishment should be taken through only through the blood. जो फ्लूइड की बात हम लोग करते हैं ना यहाँ टीसीएम में, वो फ्लूइड भी ब्लड के साथ में ही चलता है। हमें पता नहीं चलता, वो अलग से नहीं दिखता है कोई फ्लूइड, वो ब्लड के ही साथ में होता है। Right, right. अगर हमारी स्किन के बीच में, स्किन और मसल्स के बीच में आपकी डिफेंसिव ची है, तो दिखेगी तो आपको ब्लड के ही फॉर्म में। वो आपको डिफेंसिव ची में वहां कोई खड़े हुए सैनिक नहीं दिखेंगे, बट वो ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे जो डिफेंसिव ची की तरह वहां पे काम कर रहे होंगे। Sir, in report, then what do we say if we are to tonify the blood? So, अगर report होगी तो उसमें हम what are we looking रिपोर्ट for? में आपको वेस्टर्न डायग्नोसिस में कुछ नहीं मिलेगा। रिपोर्ट में जब आप चेक कराएंगे तो आपको दिखेगा हीमोग्लोबिन तो बहुत सही है, आप फिर भी Hmm. कह रहे हैं कि ब्लड डेफिशिएंट है। तो Yes. जब आप उसकी टंग देखेंगे ना, तो टंग का कलर पिंक कलर का या रेडिश पिंक कलर में नहीं दिखेगा, वो पेल कलर में दिखेगा। उसकी बॉडी, उसका फेस जो होगा, वो रेडिश कलर में नहीं आ रहा होगा, पिंकिश कलर में नहीं दिखेगा, वो आपको पेल कलर में दिखेगा। वाइट दिखेगा बट वाइट कलर में ग्लो नहीं होगा। व्हाइट जो दिख सकता है कि आपको व्हाइट हो, किसी के अंदर ब्लड नहीं है तो वो ब्लड की कमी की वजह से व्हाइट हो, बट वो ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन फैक्ट, जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं वो नहीं है। Right, sir. तो Thank वो you. सब आपको अभी जब आपको टंग पढ़ाया जाएगा या फेस डायग्नोसिस फ्यूचर में कभी पढ़ाऊंगा, तो उसमें वो सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिफरेंशिएट होगा कि कौन सा ब्लड है, कौन से में फ्लूइड की डेफिशिएंसी है। कितने लोग ये सोचते हैं कि ये जो ब्लड हमारा फॉर्म हो रहा है ये मेंस्ट्रुअल ब्लड भी है? कोई ये समझ सकता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड अलग फॉर्म होता है इस नॉर्मल ब्लड से? वही ब्लड होगा ना, अलग से कैसे फॉर्म होगा? It's like turbid blood. No, no, that is turbid due to some of the other things. Actually, menstrual blood is The not lining the shedding. same as the spleen blood. I think the blood which is formed and stored in liver during menstruation, it is transferred to the uterus. So the blood Okay, okay. formed. Don't guesses. Let's have the next slide. With the difference of making of blood, it should be pointed that the spleen plays an important role. However, menstrual blood is different to blood in other parts of the body. In fact, menstrual blood is called the Tiangui.
and it derives directly from the kidney essence. Got it? ये वो ब्लड नहीं है जो फूड ची या एयर ची या गैदरिंग ची या हार्ट से डायरेक्टली मिलके बन गया. इस ब्लड का डेरिवेशन होता है फ्रॉम द किडनी एसेंस. The most important organ in making of the menstrual blood is therefore not the spleen, but the kidneys. Menstrual blood, Tiangui, is different to blood in other parts of the body. Menstrual blood derives from the kidney essence. Blood in the body derives from the spleen and kidneys. बॉडी का जो ब्लड होता है वो ड्राइव होता है स्प्लीन और किडनी बोथ से. मेंस्ट्रुअल ब्लड जो ड्राइव होता है वो किडनी और आपका किडनी एसेंस से. दिस इज द मेन रीजन व्हेन यू सी द tongue, even in the case of having the heavy menstrual bleeding, you won't see any effect on spleen, and the part in the tongue where you see the spleen does not get any effect. But in that specific time, you will see some kind of essence depletion in the kidney area. ये But sir, एक्चुअली सब then चीजें आप लोगों को टंग डायग्नोसिस में पढ़ाऊंगा कि क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या डिफरेंसेस किस पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे. but sir, then one excessive bleeding may then we can say in us sir, that spleen not controlling the blood now. हाँ, स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग. अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो स्प्लीन कंट्रोल नहीं कर रही है, दैट इज ओके. Okay. दालक काम है. कलर वॉन्ट चेंज Uh-huh. because फंक्शन. color which is reflecting on the spleen area is due to the spleen, not due to the menstrual bleeding. I'm still But that confused. color difference can be seen in the uterus area on the tongue. No, sir, I am still little confused. Like spleen not controlling the blood is excessive uterine bleeding, sir. Right? But if we are looking at the blood in the uterus coming from the kidney essence, then Mhm. then how do you say then spleen not controlling the blood in the uterus and excessive? It should be kidney, right? Actually, the holding part is only dependent on spleen. Oh, okay, okay. Got Spleen it, sir. rising ascending function is the controller for this. Right, sir, That right. is why we need to control by spleen. Got it, sir. Got it. So But means if the the blood blood is is not kidneys, there, sir, but the holding of that kidney's blood yes, is the part of the spleen. yes, yes. Got it, sir. But if you are not having, or you are having the scanty bleeding, or you are not having the enough blood in the before the menstrual part, or before it the when the blood is creating before the menstruation, if it is not creating, you can see it in the uterus part of the tongue that the proper blood is not stored and you will not have the proper bleeding. You can say the patient by seeing its her tongue, you can easily say that your uterus is not having the enough blood, and you definitely have the spotting of the bleeding or the scanty periods. That can be easily identified, and for improvising that, now you have to make that blood. That means you have to work on the kidneys, the function of the kidneys and the kidney essence. If you work properly on the kidney essence, then only that menstrual blood will be formed. Got it, sir. Got it, sir. Well, other body part, if you need the blood, then you have to work on the spleen. And for holding that blood in the uterus, you need to work on the spleen also, not for the formation of that blood. Okay? So in short, can we say scanty menses or spotting is all due to kidney essence? Yes. In when we are having the these kind of kidney issues or spotting, bleeding, or uh,
the low bleeding or scanty periods, then the protocols which we are using is relating to the meridians, which are the eight extraordinary vessels. They are directly connected with the essences. We need to work on that essences, and especially the points of kidneys and the CV meridian and the DU meridian, which we are using. The focus is only on that meridians if you want to create the menstrual blood. Or in even in the same case, whether there is a problem in getting conceived, then also you need the same blood. If you want to conceive, then still you need the kidney essence, kidney, and the blood that is relating to kidney essence. For holding that fetus, still you need the spleen, because again the holding comes with the spleen function, not from the kidney essence, not from the kidneys. Okay, Hopefully sir. this Thank you. clears. Clear, sir. So, as the root of the post-heaven chi, the spleen also plays a role in supplementing and nourishing the original chi. Post-heaven chi, the spleen also plays the role in supplementing and nourishing. Post-heaven chi भी हमारा उसमें मिलती है ताकि उसका proper nourishment हो सके original chi के साथ. Lee Dong Yong, author, the famous discussion on the stomach and spleen. ये सारा कंटेंट मैंने इन्हीं से चुराया है. It's not all things depending on me. I am always getting the confusion that if anything is happening, there is something which is related, which is in the controlling part, and that is spleen. If I am not having the enough immunity, that is also responsibility of spleen. If I am getting any kind of disease, then also there is an issue related with the digestion. So I am searching for this, and finally I got this Stomach and Spleen, the famous book, which says the original chi can only be strong if the spleen and stomach are not weakened. हम ओरिजिनल ची को तभी बचा सकते हैं या तभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब स्टमक और स्प्लीन की ची हमारी प्रॉपर होगी, वो तभी प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा. If the stomach is weak and the food is not transformed, the stomach and spleen are weakened. They cannot nourish the original chi, which becomes empty and disease results. अगर हमारी प्रॉपर ची जो हम पोस्ट हेवन ची जो है वो प्रॉपर या पोस्ट हेवन एसेंस को प्रॉपरली मेंटेन ना करें, बनाए ना, प्रॉपर फूड, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर नरिशमेंट के साथ में ना बनाए, तो हमारी पोस्ट हेवन ची जो हमारी पहले से मिली हुई पेरेंटल ची है या पेरेंटल एसेंस है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा. और वो शुरू हो जाएगा तो लाइफ स्पैन कम होता जाएगा. So, how the spleen controls the muscles and the forelimbs. The spleen extracts the food chi from the food and so as the nourish all the tissues in the body. सेम चीजें हैं जो पीछे थी वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. This refined chi is transported throughout the body by the spleen. If the spleen is strong, refined chi is directed to the muscles, particularly those of the limbs. If the spleen chi is weak, the refined chi cannot be transported to the muscles and the person feel weary and the muscles will be weak and in severe case may atrophy. अगर स्प्लीन ची आपकी प्रॉपर नरिशमेंट या प्रॉपर नरिशमेंट टिश्यूज तक नहीं पहुंचा रही है, डीप लेवल तक नहीं पहुंच रही है, तो मसल से रिलेटेड, लिगामेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको मिलने लगेंगी. In order to determine the person's physical energy, the state of the spleen is one of the most important factor. Tiredness is a common complaint, and in these cases, the spleen must always be tonified.
किसी भी तरह की टायर्डनेस अगर आपको फील हो रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो आपका ची ब्लड नहीं बनेगा, तो आपके अंदर वीकनेस आएगी। अगर वो डायरेक्टली ची तक नहीं पहुंच बन रही है तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको वीकनेस फील हो रही है। तो द स्प्लीन गवर्न्स द मसल्स। इफ द स्प्लीन हैज हीट देयर विल बी थर्स्ट। अगर स्प्लीन में हीट है, अब नई चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। स्प्लीन के अंदर हीट है, देयर विल बी थर्स्ट, द मसल्स विल बी वीक एंड एट्रोफिड। स्प्लीन के अंदर हीट है तो मसल्स आपकी वीक होगी। हीट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? चलो खैर अभी आगे पढ़ेंगे। स्प्लीन यिन फायर भी है लास्ट में। If it says you will feel thirst, so it'll be the time according to organ clockwise. That No, time no, you no, will no, be no. thirsty. I am not concerning anything about that organ clock. I am just sticking myself in only at majorly at spleen. Okay. So Majorly Sir, because how at if can you we spleen. feel know thirsty at night, spleen then it's more spleen to do fire is with there? something else. Ask one by one. Sorry. Okay. Yeah. सर स्प्लीन में फायर है बोल के अपन को कैसा मालूम पड़ता सर? हाँ, स्प्लीन में फायर कैसे मालूम पड़ेगा ये भी आपको आगे जाके मिलेगा, जब लास्ट में एक एक्सेस कंडीशन, एक डेफिशिएंट कंडीशन, एक यिन फायर। अभी आप लोगों ने स्प्लीन में फायर नहीं सुना होगा, अब मैं आप लोगों को और सुनाऊंगा अभी आगे। एक स्प्लीन में आता है यिन फायर। वहां आपको पता चलेगा कि कब आपकी मसल्स में हीट है, कब आपकी स्प्लीन में हीट की वजह से आपको थर्स्ट लग रही है। अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दे तो शायद आप लोगों को बहुत सारी चीजें रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। क्यों डायबिटिक पेशेंट को बार बार प्यास लगती है? सोचिए, जब तक हम लोग आगे चलते हैं। So the spleen controls the muscles and the forelimbs. The forelimbs depends on the stomach for chi, but stomach chi can only reach the channel through the transmission of the spleen. अगर spleen का transmission नहीं होगा तो नहीं पहुंचेगी. If the spleen is diseased, it cannot transport the fluid of the stomach, with the result that the forelimbs cannot receive the chi of food. इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। If the spleen is diseased, it cannot transport the fluid of the stomach, with the result that the four limbs cannot receive the chi of food. फूड की ची नहीं पहुंचेगी फोर लिम्स तक। और क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि स्प्लीन में प्रॉब्लम है। आप स्टमक का ट्रीटमेंट करते रहेंगे और ये प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। जरूरत थी हमें स्प्लीन को ट्रीट करने की, और हम मोस्ट ऑफ द केस में स्टमक को ट्रीट करते रहते हैं। कई बार जरूरत होती है जब आपको इंटेस्टाइन को ट्रीट करना होता है, और आप लोग लूज मोशन के लिए स्प्लीन को ट्रीट करते रहते हैं और सही नहीं होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्गन से रिलेट कर रही है पहले प्रॉब्लम। हो सकता है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, आई स्प्लीन से हो, बट इनिशियली आपको लूज मोशन रोकने हैं तो इंटेस्टाइन पे काम करिए। इंटेस्टाइन से रुक जाए, उसके बाद स्प्लीन को स्ट्रांग करना है या इंटेस्टाइन को स्ट्रांग करना है, या कैसे स्ट्रांग करना है वो डिसाइड करेंगे। तो डिपेंड करता है कि बहुत सारी जगहों पर कैसे ट्रीट करना है, किस चीज से ट्रीट करना है। ये सारी चीजें आपको इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा टंग डायग्नोसिस से समझ में आएगा या पल्स से आएगा। लेटर ऑन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जब आप उससे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पूछेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जैसे लूज मोशन है, आपके दिमाग में सबसे पहला टीसीएम वालों के दिमाग में आता है स्प्लीन वीक है इसलिए लूज मोशन हो रहे हैं, या स्टमक की प्रॉब्लम होगी इसलिए लूज मोशन हो रहे हैं। लोग लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते ही नहीं है। लेकिन अगर किसी के इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट है तो आप स्टमक और स्प्लीन का कितना भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, उसके लूज मोशन रुकेंगे ही नहीं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट आपको लार्ज इंटेस्टाइन का करना है, वहां से ह्यूमिड हीट को कंट्रोल करना है।
सेकेंडली अब आपको ये चेक करना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट कैसे पहुंची। हीट पहुंचती है वो तो नॉर्मल सी चीज है, ह्यूमिडिटी कैसे पहुंची। ह्यूमिडिटी अगर पहुंची तो इसका मतलब स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल समवेयर। Humidity is a turbidity or dampness or edema or flame, you can anywhere you can say. But if the humidity is there, that means the spleen is deficient. So first you have to treat the large intestine humid heat. Then you need to treat that humid part. Why that humidity reaches the large intestine, or how or why it is creating over there. बहुत सारे आईबीएस के पेशेंट ऐसे होंगे जिनका ट्रीटमेंट आप लोगों ने पॉसिबली नहीं कर पाया होगा, या सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़े थोड़े दिन का रिपीट हो रहा है, तो आप वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई अप्लाई करिए, डेफिनेटली सही होगा। तो स्प्लीन ची, द डेफिशिएंसी ऑफ द स्प्लीन ची कॉजिंग द क्रोनिक टायर्डनेस। क्रोनिक टायर्डनेस हो रही है किसी को, नॉट द रिलेटेड केस विद द ओल्ड एज। कई बार लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत थकान लगती रहती है हमेशा ही, कि क्यों थक रहे हैं, क्यों थक रहे हैं, बार बार थक गए। अभी तो यंग है, सब कुछ है, एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, बट बहुत जल्दी थक जाते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजीज एनकाउंटर्ड इन द क्लिनिक। आप लोगों के केस में अगर 45 से 50 के लोग होंगे ना, उनके में सबसे ज्यादा मिलेगी। एंड दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ स्प्लीन ची कॉजिंग द क्रोनिक टायर्डनेस। स्प्लीन ची आपकी डेफिशिएंट है। वहां पे करना क्या है, लास्ट केस में हम लोगों ने स्टमक 36 और स्प्लीन को टोन किया था। यहां पर हम उसके यांग फंक्शन को भी टोन करेंगे, BL20 और 21 लेकर, ताकि जो ची का डेफिशिएंसी थी वो रिमूव हो, और यांग फंक्शन भी उसका वर्क करने लग जाए, ताकि जो असेंडिंग हो रही थी ची की वो प्रॉपर होने लग जाए। क्योंकि यहाँ पे कॉजिंग टायर्डनेस में स्प्लीन ची प्रॉपर असेंड नहीं हो पा रही है, तब हमने ऐड किया है BL20 और 21 को। आर द एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन फॉर दिस कंडीशन। तो 36 और 6 हम यूज कर रहे थे जब हमारी स्प्लीन ची डेफिशिएंट थी। पैरेलली जब हम BL20 और 21 यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें अपनी यांग ची, जो स्प्लीन की स्टमक की यांग ची थी, जिनका ऊपर और नीचे का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्प्लीन ऊपर नहीं असेंड कर पा रही है, स्टमक नीचे नहीं डिसेंड कर पा रही है, तब हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे और हम क्रोनिक टायर्डनेस को कंट्रोल कर पाएंगे। सो द स्प्लीन कंट्रोल्स द राइजिंग ऑफ द ची। The spleen produces a lifting effect of the organs. This rising of the chi is also an expression of the ascending of the spleen chi. It is this force that makes sure that the internal organ are in their proper place. Internal organ proper place पर रहें. If the spleen chi is deficient and its rising chi function weak, there may be prolapse of various organs such as uterus, stomach, kidney, bladder, anus, even the eyes, eyelids, or eyelashes, that are even the old age skin, this skin. Why this skin prolapsed or get downwards? The same reason in the old age, the spleen chi which is rising is not working properly. So if you give the proper treatment to that person whose chi is not rising properly, rising के लिए कौन सा देंगे? 20 and 21, BL20 21 देंगे। तो इसको आप कॉस्मेटिक में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की स्किन लटक गई है, ढीली हो गई है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इवन यू कैन डू द सॉल्ट मोक्षा ऑन नेवल ऑल्सो, दैट गिव्स द स्ट्रेंथ for all those 4 points, ST36, SP6, BL20 and 21, चारों का काम अकेले नेवल पे सॉल्ट मोक्षा या जिंजर मोक्षा या गार्लिक मोक्षा कोई सा भी करके कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मोक्षा भी कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि स्किन जो नेवल की होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, बर्न ना हो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जिनकी इन डेफिशिएंट होगी, पहले स्टोमक स्प्लीन स्टोमक इन डेफिशिएंट है, उसको भी कर सकते हैं मोक्षा?
हाँ, बिकॉज जब आप मोक्षा करते हैं तो वो आपका ST36, SP6 जो आपके यिन और यांग के बैलेंस को मेंटेन करता है और क्रिएट करता है, ओके। वहां से उसको बनाएगा। और जब तक आपका ची नहीं होगा, सबसे पहले क्या होता है, आप अगर पहले डायग्राम पे जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। हाँ जी। सबसे पहले फूड से ची बनती है, यस फिर यस। ची जो लंग्स पे अपवर्ड होती है, हाँ जी। तो वहां से यांग बनता है। यस जब वो यांग बनेगा, आपके फूड और आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट वही करेगा, ची वही देगा, ऑर्गन्स को सबको एनर्जी वही देगा, नरिशमेंट वही देगा। ओके सर। तो जब आप यांग को बढ़ाएंगे नेवल से, क्योंकि नेवल एक स्टोरर है, नेवल पे सारे विटामिन मिनरल्स का स्टोरेज रहता है, जब आप वहां से उसको रिलीज कराएंगे तो सारे ही बॉडी ऑर्गन जो डेफिशिएंट हो गए होंगे उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाएगा, तो सबका फंक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि उनके फंक्शंस बढ़ गए। यस। थैंक यू सर। वहां थैंक यू। पर आप केवल यांग को यूज नहीं कर रहे हैं। मोक्षा करने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप यांग को प्रमोट कर रहे हैं, उस यांग को प्रमोट करके आप यिन को क्रिएट कर रहे हैं। अगर यांग नहीं होगा तो यिन क्रिएट ही नहीं होगा ना फर्दर। यस यस यस। तो दोनों चीजें हमें चाहिए। हाँ जी। यांग यिन को क्रिएट करता है, यिन यांग को ज्ञान नरिशमेंट, को करेक्ट। यस। तभी तो साइकिल चलती है। यस सर। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर वेरी सर मच। स्प्लीन, हाँ, सर फेस लिफ्ट अगर करना है तो कौन सा ये करे स्किन का? आपको स्प्लीन को टोनिफाई करना है। टोनिफाई का लिए आपको मैंने 4 पॉइंट बताए, या तो वो चारों पॉइंट यूज कर सकते हैं, या सर ST36 स्प्लीन 6 पे निटिल पॉइंट है। मोक्षा कर सकते हैं। सर एक बार बताइए ना कौन सा पॉइंट है, क्योंकि बता वो तो लिखते रहा लिखते हूँ, बोल तो रहा हूँ, आप सुन तो रही नहीं है। ST36 और स्प्लीन 6 को आप टोन कर सकते हैं, निडल मोक्षा कर सकते हैं, या साथ में आप BL20 और 21 को यूज कर सकते हैं। अगर चारों करने में आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो सॉल्ट मोक्षा कर सकते हैं, जिंजर मोक्षा कर सकते हैं, गार्लिक मोक्षा कर सकते हैं। ओके। सर एक बात प्लीज, हार्ट The मोक्सा के बारे में garlic बताइए। moksha is the same as ginger moksha, like किस crush मोक्षा? it and put a layer and then do the moksha on top. या Okay. सेम Thank वन। एक्चुअली these are the mediators to uh, safeguard the skin, mainly safeguarding the skin. If you can do the direct moksha, then it will also be a good, but remember not to burn the skin. Definitely you have to burn the moksha, but don't burn the skin. So keep the distance. Yes. What is moksha? Moksha, it is not the part of this. You can search it over the Google. You will get the what is moksha vision. Actually, it provokes the yang energy to get into the body and provoke the yang organs to create the yin. It's also a kind of treatment. Some persons are not good in needling, they can do the moksha. It's also a good therapy. You can combine with the acupuncture also. It's also a separate therapy. You can use in so many diseases, but that is different part. So let's continue with the spleen controls the rising of the chi. Although the rising action of the spleen chi is the predominant factor in the lifting of the organs to keep them in their proper place. Descending of the chi is important too. Descending अगर नहीं होगी तो आपके organs ऊपर ही उठते जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे. The coordination between the ascending of the clear chi, that is yang in nature, and the descending of the chi, that is turbid of the chi, that is yin in nature, also plays a role in keeping the organ in place.
एक ऊपर ले जाएगा, एक नीचे लाएगा, दोनों बीच में बने रहेंगे। In some cases, the clear yang cannot ascend because turbid yin is not descending. अगर आपका yin प्रॉपर डिसेंड नहीं हो रहा है तो क्लियर यांग भी अपवर्ड नहीं होगा। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आपको जुकाम हो जाएगा, या आपको जुकाम हो गया तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो एक जगह की ची दूसरी जगह को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये उसलिए होगा। In the other words, if the turbid yin does not descend properly, it then stays in the upper body, thus preventing the clear yang from ascending. इसी की वजह से आपका जो जुकाम में आपकी बलगम नाक जो निकलती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जो टर्बाइड यांग है जो नीचे जाना था वो नहीं जा पा रहा होता है। स्प्लीन ओपन्स इन द माउथ, सब जानते हैं स्प्लीन ओपन होती है माउथ में, लेकिन क्या करती है? द एक्शन ऑफ चूइंग प्रिपेयर्स द फूड फॉर द स्प्लीन टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट इट्स फूड एसेंस। For this reason, the mouth has a functional relationship with the spleen. When the spleen chi is normal, the sense of taste is good and chewing is normal. अगर स्प्लीन ची प्रॉपर नहीं है तो आप प्रॉपर चबा नहीं पाएंगे, आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं मिलेगा। If spleen chi is abnormal, there may be impairment of the sense of the taste, difficulty in chewing, and lack of appetite. Spleen chi connects with the mouth. If the spleen chi is healthy, the mouth can taste the five grains. 5 टेस्ट जो होते हैं वो आपका माउथ समझ पाएगा। हाँ, तो स्प्लीन लिप्स पे होता है। लिप्स पे क्या करता है? माउथ में ओपन होता है तो लिप्स पे क्या काम? इट मैनिफेस्ट ऑन द लिप्स। द लिप reflect the state of spleen in a particular, they reflect the blood rather than the chi। ध्यान से समझिएगा, they reflect the blood rather than the chi of the spleen। किसी के होंठ लाल हैं या पिंकिश हैं तो वो बता रहे हैं कि ब्लड अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि ची अच्छी है। ब्लड अच्छा है, दैट इज ओके। When the spleen chi and spleen blood are healthy, the lips are rosy and moist। रोजी तो हो गए थे ब्लड से, मॉइस्ट नहीं थे। इफ द स्प्लीन ब्लड इज डेफिशिएंट द लिप्स आर पेल। अगर ब्लड प्रॉपर नहीं होगा तो लिप्स पेल होंगे। इफ द स्प्लीन यिन इज डेफिशिएंट दैट मीन्स द लिप्स आर ड्राई। जब स्प्लीन का यिन मतलब फ्लूइड्स प्रॉपर नहीं होंगे तो लिप्स आपके ड्राई होंगे। लाल हो सकते हैं, आपके पास ब्लड है तो लाल हो सकते हैं, लेकिन अगर यिन नहीं है तो वो ड्राई होंगे। इफ द स्प्लीन हैज द हीट द लिप्स विल टेंड टू बी रेड एंड ड्राई। अब अगर स्प्लीन में हीट है तो इस ब्लड आपके लिप्स कैसे होंगे? रेड और ड्राई। बहुत सारी चीजें आपको डेफिशिएंसी की ये एक पैराग्राफ में मिल गई हैं जो डायग्नोसिस में आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। कोई पेशेंट आपके पास आता है, अपने लिप्स तो नहीं छुपाता है, तो लिप्स अगर नहीं छुपाता है तो आपको क्या क्या दिख जाएगा? ब्लड की कंडीशन क्या है? ची की नहीं दिख रही है, ब्लड की कंडीशन क्या है? अगर ब्लड गुड है तो रोजी होंगे, अगर उसके साथ में ची भी प्रॉपर है तो मॉइस्ट भी होंगे। अगर ब्लड डेफिशिएंट है तो लिप्स पेल होंगे। अगर ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो ड्राई होंगे। अगर उसके अंदर हीट है स्प्लीन में तो रेड भी होंगे और ड्राई भी होंगे। हीट की वजह से रेड होंगे, लेकिन फ्लूइड आपका उड़ गया होगा इस वजह से ड्राई होंगे। एंड द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ ए स्वीट टेस्ट, और ऐसा पेशेंट आपको बताएगा कि उसके मुंह का टेस्ट स्वीट है।
Spleen controls the muscles and manifest in the lips. होपफुली ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा सबको विद डायग्नोसिस. स्प्लीन यिन सर यस सर. स्प्लीन यिन नहीं समझ में आया. स्प्लीन यिन अभी आपको आगे मिलेगा. स्प्लीन यिन क्या होता है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिशंस भी हैं, सारी चीजें मिलाकर यिन बनेगा. और वो यिन अगर डेफिशिएंट है, अगर वो यिन डेफिशिएंट है, या अगर उसमें ब्लड स्प्लीन में हीट है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लूइड उड़ जाएगा हीट की वजह से, ब्लड रह जाएगा. और ब्लड में हीट होगी, हीट होगी तो आपको रेड कलर दिखेगा. लेकिन रेड के साथ ड्राइड अगर दिख रहे हैं तो स्प्लीन में हीट है. और पेशेंट को टेस्ट जो माउथ का मिलेगा वो स्वीटिस मिलेगा. मगर स्वीट टेस्ट बोल तो माउथ में अंदर स्वीट टेस्ट फील होता सर. क्या चीज? स्वीट टेस्ट फील्स मीन्स माउथ के अंदर ही फील्स स्वीट टेस्ट. हाँ हाँ, उजमाला विचार येऊ का तिकडे म्हणजे तिला टेस्ट रोज तो रोज माउथ यावं के अंदर ही होगा ना, लिप्स पे टेस्ट थोड़ी ना फील होता है. नहीं नहीं, उनका फीलिंग होता हमेशा टेस्ट स्वीट फील होता क्या वो हाँ, उसका तो meaning. दैट मीन्स कि स्प्लीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई आपको करना है. ये स्वीट तो टेस्ट का कभी सुने नहीं सर, इसलिए पूछते. स्वीट टेस्ट होता है जैसे आप स्वीट्स खाते हैं ना, उसी तरह का या टेस्ट. As the spleen controls the mouth, it naturally controls the secretion of saliva. Saliva is translation in the Chinese word xian, which is used to describe the fluid related to the spleen. ये वो फ्लूइड है जो स्प्लीन से ही रिलेटेड है, जिसको स्लाइवा कहते हैं. Saliva's function is to moisten the mouth and to aid digestion. By mixing the food with fluids to ease the digestion, saliva is described in the Chinese books as being a clear and thin fluid in contrast to the fluid of the kidneys, which is turbid and thick. ये वो फ्लूइड है जैसे आप माउथ से थूक जैसे निकालते हैं ना, स्लाइवा होता है जो आपके फूड में मिक्स होता है. एक्चुअल में ये आपका एमाइलेज लाइपेज की तरह होता है. आप जो फूड खाने के बारे में सोचते हैं, ये स्लाइवा के अंदर वो कंटेंट होता है जो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए या उस फूड में से उस एसेंस को निकालने के लिए यूज होता है. आप इमेजिन करें कि आप दाल चावल खा रहे हैं और आप कुछ और खा लें, तो वो फूड जो होगा वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, उस फूड का जो एसेंस होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. बिकॉज किडनी आपका जो डाइजेस्टिव जो स्लाइवा जनरेट करेगा ना, वो वही जनरेट करेगा उस फूड के अकॉर्डिंग. जैसे आप कहते हैं ना लार, जो आप कोई फूड के बारे में सोचते हैं तो मुंह में जो स्लाइवा क्रिएट होता है वो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. Sir, can you repeat this again, please? Not clear to जब me. आप कोई भी चीज खाते हैं, सपोज सर आपने दाल, आप म्यूट कीजिए सर, सबको म्यूट कीजिए. सब लोग म्यूट रहा तो भाई. जब आप कोई भी फूड खाते हैं तो आपका स्प्लीन एक स्लाइवा जनरेट करता है. वो स्लाइवा उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ही बनता है. हर फूड का स्लाइवा डिफरेंट डिफरेंट होगा. इसीलिए कहा जाता है कि माउथ में आपको फूड जो जो भी खा रहे हैं उसको अच्छे से चबाना जरूरी है, ताकि फूड के हर पार्ट में वो स्लाइवा मिक्स हो जाए. अगर आप कोई चीज खाने का सोचें और कुछ और खा लें, सपोज आपको फूड में दिया, आपको बताया, आपकी आईज क्लोज करी और आपको बताया कि आपको रसगुल्ला खिला रहे हैं,
और आपको कुछ और खिला दिया, तो जो माउथ में आपके सलाइवा क्रिएट हुआ होगा ना, वो उस रसगुल्ले को खाने के लिए क्रिएट हुआ होगा। और उसके अलावा जो आप कुछ खाएंगे ना, वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, बट उससे जो एसेंस, आपका प्योर एसेंस यूजेबल और अनयूजेबल में था ना, जो यूजेबल पार्ट होगा वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि फूड जो आपका स्लाइवा बना ना, वो स्लाइवा उसी के लिए बना कि ये फूड आना था, आ कुछ और गया। So उसमें वो basically, स्लाइवा, उसमें वो एसेंस मिला ही नहीं उसको। so तो वो basically, जो, visual, sir. It is हाँ, visual, sir. विजुअल्स भी कह सकते हैं आप सुन के भी तो कर सकते हैं। Ah, okay, sir. यू कैन स्मेल ऑल्सो। And whatever we see, whatever we तो smell, आपको whatever we रसगुल्ला खिलाया hear, जाए और it स्मेल will उससे give कर the दी जाए smell लेमन। according to that sense. हाँ, Okay, sir. सपोज सपोज आपको रसगुल्ला खिलाया जाए और स्मेल कराई जाए आपको लेमन की, तो उस पर लेमन एसेंस डाल दिया जाए, तो आपको इमेजिनेशन तो लेमन एसेंस का होगा, और आपने खाया रसगुल्ला होगा, तो जो माउथ में सलाइवा बनेगा वो लेमन एसेंस का बनेगा, रसगुल्ले का नहीं बनेगा। सो रसगुल्ले का एसेंस आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए खाने से पहले खाने को देखना, सूंघना, फील करना जरूरी है। ओके, सो द स्प्लीन वैसे हाउसेस द ये इंटेलेक्ट। ये जो किडनी टर्बिट एंड जो वो क्या होता है फिर? क्या चीज? क्योंकि सलाइवा तो क्लियर एंड थिन जो होता है वो सलाइवा होता है, एंड ये थिक हाँ, एंड टर्बिट ये क्या चीज होती है? जैसे सलाइवा इज डिस्क्राइब चाइनीज मेडिसिन में जो बताया है, वो क्लियर थिन लिक्विड की तरह है, मतलब पानी की तरह होता है। और जो डैम्पनेस, फ्लेम, थिक फ्लूइड, ये जो होते हैं ये किडनी के फ्लूइड्स होते हैं। मतलब सीमेंट, जो कफ पाम्स, ये सारी जो है कफ, ये किडनी से क्रिएट होता है। कैसे होता है वो किडनी पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। ना, बट वो भी स्प्लीन ही तो क्रिएट करती है, क्योंकि मेजर पार्ट तो स्प्लीन ही क्रिएट करती है ना कफ वगैरह सब। हाँ, स्प्लीन ने क्रिएट किया, स्प्लीन ने जो क्लियर पार्ट था वो ऊपर भेज दिया, जो टर्बाइड पार्ट था वो किडनी, लीवर और इंटेस्टाइन में भेज दिया। बताया तो था। आगे उनका यूज कैसे होता है, वो कैसे माउथ में आते हैं, कैसे नेक में आते हैं, कैसे थ्रोट में आते हैं, वो पार्ट अलग है, वो स्प्लीन का पार्ट नहीं है अभी। ओके। एंड एक और चीज आपने पहले बताया था कि किसी को ना स्कैंटी पीरियड्स हो रहा है तो किडनी एसेंस डेफिशिएंट है, इसलिए उसको स्कैंटी पीरियड्स हो रहे हैं। बट जिसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो वो किडनी से वो किडनी स्प्लीन से है, क्योंकि स्प्लीन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किडनी ने फंक्शन किया है एसेंस के साथ मिलके और आपका प्रॉपर ब्लड बनाया। स्प्लीन ने उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, और जो एक्सेस ब्लड था आपका जो आगे की चीजों के लिए बनना था, वो होल्ड ही नहीं हो पाया, वो भी सब निकल गया। तो किडनी को दोबारा से पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ी, जो उसको फ्यूचर के लिए मेंटेन करने के लिए बनाना था वो भी नहीं कर पाया। तो तो इसको अगर एक्सेस नहीं एक्सेस बोलेंगे ना? ब्लीडिंग है तो एक्सेस ब्लीडिंग को होल्ड करने का काम स्प्लीन करेगी। तो ब्लड ही होल्ड नहीं का बन काम। रहा है, ब्लड ही नहीं है, तो हम्म, इसलिए किडनी को यूज करेंगे। नहीं, तो बट अगर एक्सेस एसेंस होगा तो ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ऐसे कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। एसेंस एक्स्ट्रा होने से ब्लड एक्स्ट्रा थोड़ी ना बन जाएगा। सर ने बताया था अभी कि यिन पार्ट जो होता है वो एक्सेस में नहीं होता है। ओके। यिन ज्यादातर डेफिशिएंट ही मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगा। किडनी एसेंस किसी का कभी एक्सेस हो सकता है? नहीं हो नहीं। सकता। यांग एक्सेस और डेफिशिएंट दोनों होता है, और यिन जो होता है मोस्ट ऑफ द केस में डेफिशिएंट ही होता है। एक्सेस भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट होता है। कैसे और कब होता है वो कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, वो आगे आपको कभी क्लास हुई उस सब चीजों पे तो बताएंगे। बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें आपका एसेंस एक्सीड कर जाता है। सो सर, और एक डाउट इधर, किसी पेशेंट के मुंह से रेगुलरली सलाइवा गिरता रहता है, तो दैट इज इन दैट केस आल्सो स्प्लीन इज रेस्पॉन्सिबल?
Spleen is unable to hold the fluid. ओके, जैसे कि पैरालाइज पेशेंट के मुंह से ज्यादातर ऐसी सलाइवा गिरती हाँ, रहती है। और स्प्लीन यांग भी डेफिशिएंट है ना। ओके, ओके सर। अगर वो कोई चीज अपवर्ड नहीं जा रही है तो स्प्लीन, डाउनवर्ड नहीं जा रही है तो स्टमक। अपवर्ड मूवमेंट के लिए स्प्लीन, डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए स्टमक। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। The spleen is also responsible for your intellect. Intellect is the ability to acquire the knowledge. सोच सकते हैं आप स्प्लीन आपके दिमाग के लिए भी कितना काम करती है। The spleen is said to be the residence of the intellect, the ability to acquire knowledge. स्प्लीन घर है इसका, नॉलेज को एक्वायर करने का। आप नॉलेज भी तभी एक्वायर कर सकते हैं जब आपकी स्प्लीन सही हो। The intellect resides in the spleen and is responsible for the applied thinking, studying, memorizing, focusing, concentrating, generating ideas. The postnatal chi and the blood are the physiological basis for the intellect. Thus, if the spleen is strong, then thinking will be clear, the memory good, and the capacity of concentrating, studying, generating ideas will also be good. If the spleen is weak, the intellect will be dull and thinking slow, the memory poor, and the capacity of studying, concentrating, focusing will all be impaired. So many of you are also having the problem with not getting focused in the class, getting different ideas when you are studying. Your mind is not focusing on one thing. When you start thinking of studying, so many ideas coming in your mind that you should do this or you should do this, and you are not focused. These all the things are relating to your spleen. Conversely, excessive studying, mental work, and concentration for sustained period can weaken the kidney. So this is also the reason of weakening of your spleen. Excessive studying, excessive of mental work, and the concentration. लॉन्ग टाइम तक आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं, कंसंट्रेशन रखे हुए हैं, तो भी आपकी स्प्लीन वीक होती है। In the sphere of thinking, remembering, and memorizing, there is considerable overlap between the intellect. एक और चीज समझिएगा भैया। This sometime when someone says that I'm like saturated mentally, it's because of the spleen getting weak. Yes. Spleen is not having the capacity to hold that, because the holding of your memorized words or memorized things is totally depend on your blood. If So, you start overthinking, your blood nourishment quality, your blood nutrition value get depleted. so sir, ये जो कोविड में ये जो हुआ है with the memory and all, is this related? Then can we say that It people are is experiencing related with weak the spleen? it is related with the food chi, that your food essence that is not reaching directly to your lungs, not unable to create the blood, clear the thinking, not making the clear fluid or clear extract of the spleen part, the primary part of the spleen, the So primary clear. basically, spleen is getting affected, sir, in COVID. Yes. Most of the case, you can see that the spleen is affected, and after getting the affecting of the spleen, the heart is also getting affected. Some memory, tasting, Yes, all these memory, things are tasting, smelling, these all are just coming. Just wait for few more right. minutes. These Right. all are so in the sphere of thinking, remembering, and memorizing. There is a considerable overlap between the intellect.
ऑफ द स्प्लीन, द माइंड शेन ऑफ द हार्ट, हार्ट में रहता है माइंड या शेन, एंड द विल पावर जी ऑफ द किडनी। जी जो विल पावर होती है वो किडनी में होती है, ये चीज याद रखिएगा। किडनी में हमारी विल पावर होती है, माइंड जो हमारा शेन होता है, जो स्पिरिट होती है, वो हार्ट में होती है। जो हमारा दिमाग का काम होता है, जो इंटेलेक्ट होता है, नॉलेज को गेन करने का पार्ट होता है, वो स्प्लीन में होता है। So here is the diagram for this. Memory is related to the heart and mind, that is memory of the past event. Past event जो होता है वो हमारे हार्ट में होता है. Concentrating, studying and memorizing things is depend on your spleen, that is intellect. Memory of recent event, that is in your kidneys will power. वो हमारी विल पावर होती है जिसमें चीजें याद रहती हैं. ये तीनों चीज मिलके मेमोरी बनती है. तो ना यहां पर आप लोग अपने आप को बाइफरकेट कर पाएंगे कि कौन सी चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है. क्या आप रीसेंट इवेंट नहीं याद रख पाते हैं, क्या आप पास्ट इवेंट नहीं याद रख पाते हैं, क्या आप फोकसिंग या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. तो यहां से आपको एक्चुअल मेमोरी का इशू पता चलेगा कि कहां पर है आपके, कौन सी जगह पे आप लैग कर रहे हैं जहां आपको वर्क करना है. और ये प्लीज लाइनें मत बनाइए, ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो आगे भी जाएंगी तो आप लोगों का नाम भी उसमें आ जाएगा कि कौन कौन ये काम कर रहा है. सो द स्प्लीन हाउसेज द इंटेलेक्ट में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं. द स्प्लीन इन्फ्लुएंसेस अवर कैपेसिटी. स्प्लीन से हमारी कैपेसिटी इन्फ्लुएंस होती है फॉर द थिंकिंग इन द सेंस ऑफ स्टडिंग, कंसंट्रेटिंग, मेमोराइजिंग, वर्क और स्कूल वर्क या सब्जेक्ट. बच्चों में भी मिलता है आपको ये. बच्चों में ज्यादातर बीमारियां स्टमक की स्प्लीन से रिलेटेड ही होती हैं. अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो आप लोगों के ग्रुप में जो 2 घंटे की क्लास अटेंड करने में मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहे होंगे. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्प्लीन. थोड़ा सा अभी बचा है, मुझे लगता नहीं है कि आज का टारगेट अचीव हो पाएगा, बट विल ट्राई टू एक्सटेंड लिटिल बिट. द हार्ट हाउसेस द माइंड एंड इन्फ्लुएंस थिंकिंग in the sense of being able to think clearly when faced with the life problems, and it affects the long term memory of past event. हार्ट के अंदर क्या होता है? द हार्ट हाउसेस द माइंड एंड इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग इन द सेंस ऑफ एबल टू थिंक क्लियरली व्हेन फेस द लाइफ प्रॉब्लम्स. जो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती हैं, बार बार याद आती हैं, वहां आपका हार्ट इफेक्ट होता है. The connection and the interaction between the intellect of the spleen and the mind of the heart is very closely in the sphere of memory. लेकिन अगर रिलेटेड कोई भी चीज आपकी स्प्लीन से हो, हार्ट से हो, किसी भी चीज से हो, ओवरऑल इफेक्ट आपका लास्ट में जो आएगा वो हार्ट पर ही आएगा. किसी भी टाइप की मेमोरी से रिलेट हो, किसी भी टाइप के इमोशन से रिलेट हो, उसका लास्ट इम्पैक्ट जो है वो हार्ट पर ही आएगा. द हार्ट फंक्शन ऑफ रिकलेक्टिंग इज कॉल्ड द इंटेलेक्ट. द हार्ट का जो वापस से सारी चीजें कलेक्ट करना इंटेलेक्ट कहलाता है. द किडनी नरिशेस द ब्रेन एंड इन्फ्लुएंस द शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ एवरीडे लाइफ. किडनी दिन भर नरिश करती है जिससे हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीजें मिलती हैं. शॉर्ट टर्म अगर किडनी में नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो फेल हो जाएंगे. इनफैक्ट इन द ओल्ड एज देयर इज ए डिक्लाइन इन द किडनी एसेंस विच फेल्स टू नरिश द ब्रेन. अब किसी की किडनी अगर एसेंस जो है वो वीक है तो उसको कौन सी चीजें नहीं याद होंगी, नहीं याद आएंगी. अभी मैंने थोड़ी देर पहले कोई चीज बताई और मैं उससे पूछ लूं तो वो भूल जाएगा. दैट मीन्स द किडनी एसेंस इज फेल टू नरिश द ब्रेन. इमीडिएट वो चीज आपको रिकॉल नहीं हुई. फॉर दिस रीजन मैनी ओल्ड पीपल ऑफन फॉरगेट द रीसेंट इवेंट विच इज ड्यू टू ए किडनी वीकनेस, and they people are, or one of us our are teaching their memory issues relating to other part, but the actual problem is relating to the weakness of kidney, that is not recalling the recent event and yet may not able to remember the long past event which is dependent on the heart.
हो सकता है कि वो चीजें लॉन्ग पास्ट की भी नहीं याद कर पाए, बट ये रीजन केवल हार्ट के केस में होगा। कोई पुरानी चीज होगी वो कौन नहीं याद रख पाएगा जिसका हार्ट से रिलेटेड कोई इशू होगा। बट बूढ़े लोगों को अगर आप पूछो तो उन लोगों को पुरानी, बहुत पुरानी पुरानी चीजें याद रहती हैं, पास्ट इवेंट्स बहुत याद रहते हैं। बट जो रीसेंट इवेंट होते हैं वो किडनी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं याद रहते हैं। या ओल्ड एज में अगर किडनी के साथ हार्ट में भी प्रॉब्लम है तो दोनों नहीं याद रहते हैं। As for the intellect of the spleen, some people may have an extraordinary memory in their work and study field. लेकिन अगर स्प्लीन का इंटेलेक्ट अच्छा है तो उनको मेमोरी भी अच्छी मिलती है और उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी के साथ भी काम हो जाता है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्प्लीन एंड yet टू बी वेरी फॉरगेटेबल इन एवरीडे लाइफ। और अगर किसी की स्प्लीन वीक है और इंटेलेक्ट अच्छा है तो उसको बाकी चीजें तो रहेंगी लेकिन रिसेंट चीजें भूल जाएगा, विच इज डिपेंड ऑन द हार्ट। डेली की चीजें भी हैं। द मेमोराइजिंग फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट ऑफ द स्प्लीन इज सो क्लोजली रिलेटेड टू द विल पावर ऑफ द किडनी। तो मेमोराइजिंग फंक्शन तीनों ही चीजों पे डिपेंड है, जो हमने तीनों चीजें अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ी। तीनों चीजों में अलग अलग पार्ट है। एक में पास्ट इवेंट में है, एक में हम कंसंट्रेट करेंगे तो पास्ट या प्रेजेंट में काम कर पाएंगे। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो रिसेंट इवेंट तो आपको ऑटोमेटिकली नहीं याद रहेंगे, क्योंकि आपका फोकसिंग ही नहीं होगा, आप नॉर्मली नहीं याद रख पाओगे तो रिसेंट में आप भूल ही जाओगे। और अगर ये नहीं होगा तो आपका पास्ट इवेंट जब बहुत बात पुरानी हो जाएगी तो भी ये याद ही नहीं होगा, तो आप भूल ही जाओगे। लेकिन अगर हार्ट आपका पहले अच्छा था और बाद में वीक हो गया, इंटेलेक्ट स्प्लीन, तो ये चीजें याद रहेंगी। अगर ये वीक हो गया तो आपको लॉन्ग टाइम बाद भी पास्ट इवेंट नहीं याद रहेंगे। सिमिलर विद द किडनी। अगर किडनी आपकी विल पावर अच्छी है, किडनी अच्छी काम कर रही है तो रिसेंट इवेंट याद रहेंगे, पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टोरिंग ऑफ डेटा, जो आपने अब तक पढ़ा उसका स्टोरिंग, द स्टोरिंग ऑफ डेटा ऑफ द इंटेलेक्ट इज कॉल्ड द मेमोरी जी। मेमोरी को जी या हमारा ब्रेन। सर, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, अगर किसी को रिसेंट भी बातें याद ना रहती हो और पुरानी भी बातें याद ना रहती हो तो मतलब याद दिलाने के बाद याद आता है लेकिन अगर याद ही रिसेंट नहीं रहता है। तो किडनी, और अगर पुरानी नहीं याद रहती है तो हार्ट। मतलब दोनों में प्रॉब्लम है। हाँ, ओके। जरूरी नहीं है ऐसा कि किसी बड़े में ही हो, ओल्ड एज में ही हो। आजकल तो सब चीजें यंग जनरेशन्स में भी मिल रही हैं, इवन बच्चों तक में मिल रही हैं। हम्म। लेकिन ये सारी चीजें बनने के लिए अगर बच्चों में प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स द फूड इज द मेन पार्ट। फूड से ही ओके। बन रही है, फूड से ही प्रॉपर ची बन रही है जिससे सारा काम हो रहा नहीं, ये सीनियर सिटीजन का प्रॉब्लम है एक जो मेरे है। पहचान के है। It's mostly related to kidney for the recent event and the heart is for the past events. So treat for kidney part first. Then most probably when you are treating with the kidney, the heart will automatically get in the good condition, ओके सर, थैंक यू। because kidney essence nourishes all the organs. When you are working on the kidney essence, then it will also nourishes हाँ। heart. So the storing of the data of the intellect is called the memory. It should be noted that although the mental aspects of the kidney Z express as the willpower, it also has the meaning of memory or mind. In the above mentioned quotation, Z has the meaning of memory. Noted that although the mental aspect of the kidney Z expressed as the willpower, it also has the meaning of memory or mind. In the above mentioned quotation, Z has the meaning of memory. एक्चुअली में विल पावर आपकी बहुत सारी जगहों पे काम आती है। आपका करेज कितना है ये आपका विल पावर आपकी किडनी डिसाइड करती है। तो किडनी के फंक्शंस जब कभी आगे पढ़ाएंगे तब डिटेल में उसके पास जाएंगे, या आपको कभी फ्यूचर में अलग अलग
टाइप के सोल्स पढ़ाए, ये भी जो सोल्स हैं या जो इंटरनल चीजें हैं वो बताएंगे तब पता चलेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द पेंसिवनेस। अभी तो काफी बचा है। पेंसिवनेस इज वेरी सिमिलर टू द वरी, जानते होंगे आप लोग। इट इज इन इट्स कैरेक्टर एंड इफेक्ट। पेंसिवनेस कंसिस्ट ऑफ इन ब्रूडिंग, constantly thinking about certain event or pupil or even through not worrying। सोचते रहना, कंटिन्यू सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। और नॉस्टलिक हैंकरिंग आफ्टर द पास्ट, कोई पुरानी बात के बारे में या जर्नली किसी चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहना। इन एक्सट्रीम केस इट लीड्स टू द ऑब्सेसिव थॉट्स। In a different sense, pensiveness also includes excessive mental work in the process of one's work or duty। इससे भी हमारी जो स्प्लीन है वो वीक होती है। इन ए वे पेंसिवनेस इज नथिंग बट द नेगेटिव इक्विवेलेंट ऑफ द इंटेलेक्ट कैपेसिटी फॉर फोकसिंग एंड कंसंट्रेशन। कहते हैं ना कि तुम हमेशा नेगेटिव नेगेटिव ही सोचते रहते हो, तुम्हारा फोकस ही नहीं होता है कोई चीज में, ये नहीं होता है, वो यहीं से आता है। जस्ट एज द इंटेलेक्ट अलाउज अस टू फोकस एंड कंसंट्रेट विद द क्लियर माइंड, when the person is affected by the pensiveness, the same mental power are manifested in the negative way with the excessive thinking, brooding, etc. Pensiveness affects the spleen and like worry, it knots the chi। अभी ये जो नॉट्स की बात हम लोगों ने करी ना, नॉट्स का मतलब जर्नल आपकी वो नहीं हुई, कंटिन्यूस सोचने से। ये नॉटिंग का मतलब क्या है? स्प्लीन एक आपकी सीधी चल रही है, अगर अपवर्ड नहीं जा रही है, वहां पे एक गांठ ही लग गई, इट नॉट्स द ची। अब ये ऊपर जा भी नहीं पा रही है। आप उस जो नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया होगा ना, आप उसको कितना भी पॉजिटिव बताते रहिए, उसकी सोच हमेशा नेगेटिव रहती है। और यही कारण है कि इट्स नॉट्स द ची। जिसकी ची नॉटेड होगी वहां आपको पेंसिवनेस पे काम करना पड़ेगा, तभी आप उसके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। हाउएवर वरी विल टेंड्स टू नॉट ची इन द अपर बर्नर। अगर वरी होगी तो अपर बर्नर में आपके नॉटिंग हो जाएगी ची की, प्रॉपर वे में अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर पाएगी। वेयर एज पेंसिवनेस नॉट द ची इन द मिडिल बर्नर। पेंसिवनेस होगी तो मिडिल बर्नर में हो जाएगी, स्टोमक स्प्लीन आपके प्रॉब्लम करेंगे। Here comes the word with the stagnation of the chi in the middle burner will cause the poor digestion and feel of distension and of the epicardium। यहाँ प्रॉब्लम जो नॉटिंग हुई उससे पता चलता है कि स्टैग्नेशन क्रिएट हुआ। बहुत सारे लोग जो मेरे पास चीजें पूछते हैं, या मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं या मेरे पुराने पेशेंट हैं, वो यही सोचते हैं या पूछते हैं। मैं उनसे अक्सर ये पूछता हूँ कौन सी चीज है जो छुपा रहे हो, जो बता नहीं रहे हो, जो क्लियर नहीं है। दिस इज द रीजन वाई द स्टैग्नेशन इज क्रिएटेड इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, इन डिफरेंट डिफरेंट बर्नर्स। यहां से वो रीजन पता चलता है टंग में कि स्टैग्नेशन है मिडिल बर्नर में, अपर बर्नर में, ब्रेस्ट एरिया में, हार्ट एरिया में, लंग्स एरिया में, यूट्रस में, या और कोई डिफरेंट ऑर्गन से रिलेटेड, या ब्लड में। यहां से पता चलता है क्योंकि उसके इस उस एरिया की ची जो है, उस बर्नर की ची जो है वो नॉटेड हो गई, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन क्रिएट हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, जब तक कि वो थॉट्स आप उसके दिमाग से नहीं निकालेंगे, वो नॉटेड ची को ओपन नहीं करेंगे, आप कितने भी पॉइंट्स लगा लीजिए, वो स्टैग्नेशन प्रॉपर रिमूव नहीं होगा। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम से मैं स्टैग्नेशन के पॉइंट्स दे रहा हूं, बट जिन लोगों ने अपने मन की बात बोल दी उनके तो क्लियर हो गए, जिन्होंने नहीं बोली उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस क्लास में होंगे भी। सो सम अदर थिंग्स विच आर ऑल्सो रिलेटेड, बस ये पांच और हैं। द अदर रिलेशंस बेस्ड ऑन द फाइव एलिमेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज स्मेल, कलर, टेस्ट,
क्लाइमेट, साउंड। ये 5 और चीजें हैं जो आपके किसी स्प्लीन को करते हैं। इट स्मेल्स, इज फ्रेगनेंट। The body odor related to the spleen is fragrant and sometimes also described as sweetish. The body odor related to the spleen is fragrant and sometimes also described as sweetish. बॉडी का ऑर्डर मीठी सी स्मेल वाला भी हो सकता है। Although the sweetest smell is more related to the heart pattern of the spleen. स्प्लीन के हार्ट पैटर्न से ज्यादा कनेक्टेड है, वो आगे पढ़ाएंगे जब पैटर्न्स, तब आपको क्लियर हो जाएगा। द फ्रेगनेंस स्प्लीन smell really is like a perfume but with a faint sweet silky overtone. Such a smell may indicate either a spleen deficiency or dampness obstructing the spleen. बहुत सारे लोग आप देखेंगे, जैसे सपोज करिए कि कोई आपका घर में हो सकता है हो या हो सकता है ना हो। कुछ लोग होते हैं रात को या दिन में अगर कच्चा प्याज खाते हैं तो उनकी बॉडी से कुछ प्याज जैसी स्मेल आती है। कुछ लोग होते हैं जो मेथी या कुछ इस टाइप के फ्रूट्स या सब्जियां खाते हैं जिनके इवन यूरिन तक से उस सब्जी या उस फ्रेगनेंस की स्मेल आती है। दैट ऑल बिकॉज ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन उसका फ्रेगनेंट, उसका परफ्यूम, उसका स्मेल, उसका एसेंस प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो। इट्स कलर इज येलो, स्प्लीन का। अब ये स्प्लीन का कलर येलो है, लेकिन हमने तो फोटो कुछ और दिखाई थी, तो स्प्लीन का कलर येलो नहीं है। द येलो कॉम्प्लेक्शन कलर इज एक्सट्रीमली कॉमन। इट इज यूजली सीन ऑन द चीक्स, foreheads or chin. A pale, dull yellow color indicates the spleen deficiency. A richer, fuller, bright yellow color indicates the damp heat. Damp heat is richer, fuller, bright yellow color indicates the damp heat. Whereas if it is dull, it indicates the chronic dampness. अगर हीट नहीं है तो कैसे ट्रीट करेंगे, ये तो सब हम लोग लास्ट में जान लेंगे। इट्स टेस्ट इज स्वीट। A sweet taste in the mouth may indicates the dampness, especially with the heat. अगर माउथ का टेस्ट स्वीट है, बिना स्वीट खाए माउथ का टेस्ट स्वीट अगर आ रहा है, तो इट्स रिलेटेड टू द डैम्पनेस विद हीट। एज फॉर द टेस्ट ऑफ फूड स्टफ, फूड्स विद ए स्वीट टेस्ट नरिशेस द स्प्लीन। फूड का टेस्ट, स्वीट टेस्ट फूड का स्प्लीन को नरिश करता है। इफ टेकन मॉडरेशन, अगर नॉर्मली लेंगे तो। इफ एक्सेस, दे वीकन द स्प्लीन एज वेल एज द किडनी। ज्यादा खाएंगे ना मीठा तो स्प्लीन को वीक करेगा, साथ में किडनी को भी वीक करेगा। नॉट ओनली द स्प्लीन, इट वीक्स द किडनी ऑल्सो। बट you need to eat the sweet also because it nourishes the spleen, but don't किडनी overeat. किडनी को वीक क्यों करेगा? वो किडनी में पढ़ाएंगे हाँ, कैसे क्योंकि करेंगे, आपको बताएंगे ना। ना क्योंकि स्वीट खाने से स्प्लीन वीकन हो जाएगा, और कंट्रोलर वीक होगा तो जो ग्रैंडसन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। वो आपको आगे बताएंगे कैसे हो जाएगा। खाली 5 एलिमेंट से ही चीजें नहीं होती हैं। टर्बिडिटी बढ़ेगी हम्म। ज्यादा खाने से, हम्म। तो अनक्लियर फूड जो होगा वो नीचे ज्यादा जाएगा। स्मॉल हम्म। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, किडनीज। जब किडनीज में पहुंचेगा तो किडनी के फंक्शन को बढ़ाएगा, किडनी की वर्किंग को बढ़ाएगा, हाँ। उसका प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन में हाँ। ओके। ज्यादा काम कराएंगे तो वो थक जाएगा। हम्म। इट्स क्लाइमेट इज डैम्पनेस
External dampness is the major pathogenic factor as it is very common. सबसे बड़ा स्प्लीन का दुश्मन जो है वो है dampness, damp climate. Please note that the external dampness denotes not just the damp climate, but also damp living condition, such as living in the basement with a damp problem in the walls. Walls में सीलन है, आप उसमें रह रहे हैं तो भी वो प्रॉब्लम करेगा. And also some habits such as wearing a wet swimsuit after swimming or sitting on the damp grass. ज्यादातर लोग जो बड़े शहरों में होते हैं ना वो डैम्प ग्रास पे भी बहुत बैठते हैं, गीली गीली घास पे बैठे रहते हैं, तो वो डैम्पनेस धीरे धीरे उनकी बॉडी में आ जाती है. एक्सटर्नल डैम्पनेस एंटर्स द चैनल of the legs and especially the spleen, settling in the lower burner where it may cause many different problems such as excessive vaginal discharge or the urinary problem. तो नंगे पैर जो लोग घूमते हैं ज्यादातर घर में या बाहर, जो डैम्पनेस या डैम्प एनवायरनमेंट या कोल्ड एटमॉस्फेयर है घर में भी, वहां पर अगर आप नंगे पैर घूमेंगे तो वो डैम्पनेस आपके स्प्लीन में, स्प्लीन का फर्स्ट नंबर पॉइंट आप लोगों को पता होगा, हम पे होता है टिप पर. तो पैथोजेंस घुसने के लिए भी सबसे इजीली पॉइंट्स जो होते हैं वो हैंड के टिप्स और फुट के टिप्स होते हैं. तो बहुत इजीली वहां से एंटर होता है और सबसे पहले लोअर बर्नर में ही एंटर कर पाता है. वहीं से आपको एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज या यूरिनरी प्रॉब्लम या अनकंसिस्टेंसी इन यूरिन या यूरिन अनेबल टू होल्ड, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. तो इन चीज़ों से फीमेल्स को स्पेशली बचना चाहिए बिकॉज दे आर मोर यिन इन नेचर. Invasion, clinical tip. Invasion of external dampness in the spleen channel is extremely common. So SP9 is the best point to drain the dampness from the lower burner. Lower burner से dampness को रिमूव करना है, या आप ये कह सकते हैं पूरी बॉडी से ही dampness रिमूव करने के लिए ये मेजरली पॉइंट की तरह यूज होता है SP9. क्योंकि आपके जॉइंट्स में, आपके लोअर बर्नर में, लोअर बॉडी पार्ट में अगर डैम्पनेस है या आप मोटे हैं या आपकी थाइज मोटी हैं या नीज मोटे हैं तो आपको SP9 फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा. SP9 करेगा क्या? SP9 आपके जो टर्बाइड टाइप का जो डैम्पनेस बन गया है उसको ब्रेक करेगा. जस्ट ब्रेक दैट. और जब ब्रेक हो जाएगा तो वो बॉडी फ्लूइड्स के संग में मिक्सअप होके और ड्रेनेज प्रोसेस में अपने आप पहुंच जाएगा. इट्स साउंड इज सिंगिंग. ए सिंगिंग टोन ऑफ वॉइस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्यूपिल विद ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्प्लीन डेफिशिएंसी. स्प्लीन डेफिशिएंसी वाले लोग गाते बहुत हैं. Spleen as a sound related to the spleen may also be observed in the people who have the habit of humming a tune, often an unrecognizable one, while they go about their daily activities. दिन भर के काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, चलते रहते हैं, गाते रहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो भी गा रहे हैं, नहा रहे हैं तो भी गा रहे हैं, या कुछ गुनगुना रहे हैं. और ये गुनगुनाने से उनकी स्प्लीन भी वीक होती है. ऐसा नहीं है कि वही लोग गाते ही हैं, जो लोग गाते हैं उस गाने से भी स्प्लीन वीक होती है. सर ये आपस में जो एक बात है कि अपने अपने में ही जो बात करते हैं वो क्या है? हाँ, सेम सेम थिंग. सेम चीज है ना? ओके. गाना गुनगुनाना, बड़बड़ाना, रात को सोते समय बड़बड़ाना, कुछ बोलते रहना, जो दिन भर की एक्टिविटी है वो रात को दिन रात भर बोलते रहना, ये सारी चीजें इसी में आती है. ड्रीम्स. इफ द स्प्लीन इज डेफिशिएंट, वन ड्रीम्स ऑफ बीइंग हंग्री. स्प्लीन डेफिशिएंट है तो उसको रात को सपने में भूख लगेगी. वन ड्रीम्स ऑफ ओबेस माउंटेन्स एंड द मार्शेस. इफ द ड्रीम टेक्स प्लेस इन लेटर समर, one dreams of building a house. If the spleen is in excess,
अब स्प्लीन एक्सेस भी हो गई। वन ड्रीम्स ऑफ सिंगिंग एंड बीइंग वेरी हैवी। उसको लगेगा कि वो बहुत भारी भारी सा हो रहा है, उसको फील होगा ऐसा। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, लग रहा है बहुत भारी भारी सा फील कर रहे हैं, हेड भारी है, या चलने में बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है, और गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये जब आप लोग थोड़ा अपना जो पेशेंट के साथ में कंसल्टेशन है उस पर टाइम देना शुरू करेंगे ना, तब आप ये चीजें रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। स्प्लीन गवर्न्स द फोर लिम्ब। कितना बचा है यार अभी? थोड़ा सा ही है। चलो थोड़ी सी क्लास एक्स्ट्रा कर लेते हैं। होपफुली यू पीपल डोंट माइंड। यस सर, करिए। नो सर, प्लीज कल कर लीजिए। ये 4-5 स्लाइड्स हैं बस। हाँ। ये एक ही कंटिन्यूएशन की है, इसलिए एक में रखी है, नहीं तो फिर पीछे से कनेक्टिविटी चली जाएगी उसकी। द स्प्लीन गवर्न्स द फोर लिम्स, अभी आप पढ़ भी चुके हैं ये, बस थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग है। द स्प्लीन डिस्ट्रीब्यूट्स द फूड एसेंशियल essences to all the parts of the body and is the particulars to the limbs. For the reason when the spleen is deficient, the food essence cannot reach the limbs, which will feel cold and weak. अगर हम अब हमें लिम्स में कोल्ड और वीकनेस फील हो रही है, one can observe this in the practice as often digestive disturbance causes the one's limbs to be cold. जब डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस रहता है तो लिम्स हमारे कोल्ड होते हैं, अपर लिम्स या लोअर लिम्स दोनों ही। स्प्लीन से जाएगा फूची में, फूची से अपर और लोअर लिम्स में। कैसे होगा? द स्टोमक इज द origin of the fluid in the body and the spleen transforms and transport them. The stomach fluids are part of stomachache, while the activity of the fluid transformation and transportation is the part of spleen yang. It is interesting to note that although the stomach is yang organ, it is the origin of fluid. It is the origin of fluid. Yang organ है, but origin है fluid का. And although the spleen is in organ, it provides the yang energy to transform and transport the fluid. स्प्लीन हमारा यिन ऑर्गन है, लेकिन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? ची से। जो ची और ब्लड बन रहा है, तो ब्लड तो आपने छोड़ दिया, जो ची था वो आपका एनर्जी थी, यांग एनर्जी, जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को कराने के लिए काम आ रही है। The spleen is the root of post heaven chi. The spleen is the root, is the origin of the chi and blood in the body. For this reason, it is called together with the stomach. Stomach के साथ the root of the heaven chi. Stomach और spleen को मिला के post heaven chi कहते हैं. That is the chi and the blood produced after birth. बर्थ के बाद जो हुआ है, एज अपोज टू द प्री हेवन रिलेटेड टू द किडनी। प्री हेवन जो है वो किडनी से रिलेट है, और जो बाद में हमने बनाया, जो हमारे खाने, हमारे सांस लेने या पीने से बना, वो था हमारा पोस्ट हेवन। विच, जो हमारा प्री हेवन है, विच नरिशेस द फीटस बिफोर बर्थ एंड विच डिटरमाइंस अवर हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन। प्री हेवन से हमें नरिशेस मिला फीटस को, और हमारी हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया। द स्प्लीन इज द ओरिजिन ऑफ बर्थ एंड डेवलपमेंट। This refers to the central role played by the spleen in nourishing the body and promoting the development in the so far as the spleen is the origin of the chi and blood. यहाँ पर एक कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाएगा आप लोगों ने अगर पढ़ेंगे। द स्प्लीन इज द origin of birth and development. यहाँ पर जो है ये स्प्लीन जो काम कर रहा है बर्थ और नरिशमेंट का, डेवलपमेंट का, ये फीटस के लिए है। जब आप दूसरे के पेट में हैं वहां उसकी स्प्लीन, उसका जो नरिशमेंट हो रहा है वहां पे नरिशमेंट जनरेट किया, बर्थ का क्रिएशन किया स्प्लीन किडनी ने, लेकिन उसका डेवलपमेंट और उसका ओरिजिन जो बनेगा वो स्प्लीन बनेगी। क्रिएशन के लिए जो मेल और फीमेल के स्पर्म से बना, एग से बना, वो किडनी का काम था।
बनने के बाद उसका जो डेवलपमेंट होगा वो स्प्लीन से होगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के केस में स्प्लीन के पॉइंट्स को नहीं छेड़ा जाता है, क्योंकि उससे चांसेस मिसकैरेज के होते हैं। This refers to the central role played by the spleen in nourishing the body and promoting the development. बॉडी का नरिशमेंट और डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इन द सो फॉर एज द स्प्लीन इज द ओरिजिनल ऑफ ची एंड ब्लड, क्योंकि ची और ब्लड का ओरिजिन जो है वो स्प्लीन है। द स्प्लीन राइजेज द क्लियर यांग अपवर्ड, स्प्लीन राइज करती है क्लियर यांग को अपवर्ड जाने में। एज वी हैव सीन द स्प्लीन ची ascends, we can see this ascending movement in the ascending of the food chi to the lungs to make the gathering chi and to the heart to make the blood. लंग्स तक जाएगा गैदरिंग ची बनाने के लिए, हार्ट तक जाएगा ब्लड बनाने के लिए। द असेंडिंग ऑफ द ची spleen chi is also essential to transform and transport the fluid. The ascending of the spleen chi implies the ascending of the clear chi. In relation to the head, this is often called the clear yang as it rises to the head. ये हेड तक राइज करेगा। हेड में कहाँ करेगा? क्लियर द yang brightens the upper orifice. अपर orifice में कहाँ पहुंचेगा ये? आईज, नोज, ईयर एंड माउथ, इन चार जगहों पे पहुंचेगा ये एनर्जी ची, स्प्लीन की जो क्लियर यांग एनर्जी है वो। Therefore, spleen chi flow upwards to carry the clear yang energies upward to the head, मतलब सिर तक पहुंचेगा। So if the spleen chi does not lift the clear yang towards the head, either because it is deficient or because it is obstructed by dampness, तो dampness से ही ये 99% obstruct होती है। The clear yang cannot rise to the head and this result in a dull headache. जब आपके अंदर डैम्पनेस की वजह से प्रॉब्लम होगी तो डल हेडेक होगा। यांग एक्सेस की वजह से अगर हेडेक होगा तो वो शार्प हेडेक होगा। एंड ए फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड मूजीनेस इन द हेड, हेड में हैवीनेस फील होती है। दो और चीजें बची। द स्प्लीन डिसलाइक द डैम्पनेस, स्प्लीन को डैम्पनेस पसंद नहीं है, ड्राइनेस पसंद है। डैम्पनेस इजीली ऑब्स्ट्रक्ट the spleen, causing a dysfunction of its activity and transformation and transportation. This can cause the abdominal fullness, urinary problem और vaginal discharge. ये dampness की वजह से create होते हैं। In the head, dampness prevents the rising of the chi, spleen chi, causing a dull headache and feeling of heaviness and mooziness. ये प्रॉब्लम ज्यादातर आपको फीमेल्स में मिलेगी, स्प्लीन की जो डैम्पनेस की प्रॉब्लम होती है। जिनको वेजाइनल डिस्चार्ज या हैवीनेस, वीकनेस बॉडी के अंदर लगती है, पीरियड्स के टाइम में वीकनेस लगती है, स्लीपीनेस लगती है, लेथार्जिक रहते हैं, वो सब इसकी वजह से ही है। स्प्लीन लाइक्स द डार्कनेस, ड्राइनेस। The connection with the transportation of food and digestion, it is said that the spleen like the dark and dryness. This means that the spleen activity of the transportation and transformation can easily be impaired by the excessive consumption of cold fluid. तो इम्प्योर आपका जो इम्पेयर्ड अगर उसे करना होगा या इम्पेयर्ड चीजें हमारी हो जाएंगी तो उसके पीछे क्या होगा? कोल्ड लिक्विड या आइसी ड्रिंक्स जो हमारी स्प्लीन को वीक करती हैं। जब हम ऐसी चीजें खाते हैं या पीते हैं जो कोल्ड इन नेचर होते हैं, या कोल्ड फूड है, या सैलेड्स ज्यादा हैं, या आइस ड्रिंक्स हैं, वो आपकी स्प्लीन को वीक करती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द स्टोमक लाइक्स द वेटनेस, स्टोमक को वेटनेस पसंद है। दैट इज फूड दैट इज आर मॉइस्ट एंड आर नॉट ड्राइंग। तो फूड जो मॉइस्ट है, ड्राइंग है नेचर में, वो पसंद है। सो दिस एंड्स विद योर डे वन। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ, ज्यादा इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि स्टमक स्प्लीन का कोर्स जो मैंने प्रिपेयर किया है ये बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा है और कंप्लीट कराना है तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। होप यू पीपल डोंट माइंड दिस। सो आज की क्लास में कोई क्वेश्चन?
Thank you, sir. Very nice class. No question. वेरी गुड क्लास सर। सर रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि एक बार में तो भी एक रिपीट करना पड़ेगा। रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग तो चाहिए, एक बार रिकॉर्डिंग से अच्छे से सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। सर सुनेंगे सुनेंगे। सर पीडीएफ तो दे सकते ना सर? सर अभी अगर कल सुन लेंगे तो सुन लेंगे, नहीं फिर छूट जाती है बिल्कुल। कल सुन लेंगे या आज सुन लेंगे। So maybe you can give us a recording for at least 48 hours. So at least we can listen to it once again and make some notes. Okay. This makes sense actually. Thank you so much. Sir, I'm so sorry I have to go because it's very late for me, if you don't mind. I have questions, but I can't ask because I have to No, go. you can ask. Sir, I have to go. That's why. Thank Okay, you then you so much. can ask in the group also. Yes, sir. Thank you Uterus very much, sir. and bleeding is due to weakness of kidney essence and spleen chi deficiency. Fibroid, what is fibroid? पहले ये तो बताइए ये फाइब्रॉइड होते क्या हैं, तब मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊं कि ये किसकी वीकनेस या किसकी प्रॉब्लम की वजह से है। ह्यूमिड ह्यूमिड हीट इन लोअर बर्नर। लोअर बर्नर। तो लोअर बर्नर की हीट को या ह्यूमिड को कंट्रोल करेगा स्प्लीन, और हीट को कौन कंट्रोल करेगा? हीट को कौन कंट्रोल करेगा? ट्रिपल वार्मर। हीट को कंट्रोल करेगा किडनी। ट्रिपल वार्मर इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ हीट. It is just a responsibility of triple warmer to maintain the heat, all the burners according. हाँ मीरा जी, Sir, namaste, sir. नमस्ते। Sir, I have a question. A child, if they doesn't get a periods after 16 year also, what is the main reason for it, sir? Because of depletion of the chi. Okay, in spleen only. Someone is having good chi, then she can have the periods till the age of 60s. No, sir, it has not started only means. Hmm? The periods has not started after 16 also. It depends on the kidney and spleen both. Okay. Then we have to treat both kidney and spleen. It need to be checked whether the spleen is deficient or the kidney are deficient, or the reasons why it is not having the Maybe menstruation. PCOD. It may be related to the uterus also. Okay. Okay, sir. Thank you. Can I call you tomorrow, sir, to find out? You can, Tomorrow morning around 11 o'clock? yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, for spotting periods, मतलब जैसे scanty periods है, for that you said kidney is responsible. Yeah, because your blood is not formed. Okay. If the blood is not formed, then how it comes out? Oh, correct. Anything more? So for skin, spleen works because if itching is there, or dryness of certain part of the skin, which Repeat part? it. Huh? Can you repeat the question? Itching on particular part. Okay. Yeah. And having dryness over that, and that called itching, but that itching is not a continuous itching, it's a moving itching. मतलब अभी नहीं है, लेकिन suddenly it comes with a itching pain. It is somewhere related to the dryness, or the nourishment is not happening to the skin. Proper nourishment is not getting. But only full body में ऐसा भी नहीं, एक particular skin का part पे ही हो गया है, and there only it gets itching lot.
Actually, it depends. The part which is is externally or External, with externally, the sir. external organs or the Hmm. external part. Suppose your hand is there and you are Hmm. having it over here, then it is Hmm. related. And if it is inside the body and it is having some different conditions also. ये Maybe a condition of excess dampness. अच्छा सर सर ने Also, अभी क्या बताया उसका फाइब्रोइड का क्या चीज फिर से बोलिए. For excess dampness, spleen 9 you have to go, no, sir? Yeah, if you can check that you are having the excess dampness, then you can go with the spleen 9. If you are not having the proper nourishment, then you have to go with the spleen tonification. You have to go with the spleen 36 and spleen 6. Okay, And sir. if the chi is not moving properly, then you have to add with the BL20 and 21. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay. So your teaching is very clear and really no doubts actually. Thank Okay. you so much. सो कल क्लास आप लोग थोड़ा लेट ना करिएगा क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और मेरे पास टाइम जो है वो 17 तक की है. 18 से सेकंड सेमेस्टर शुरू करना है. तो प्लीज़ आप लोग लेट करेंगे तो फिर मुझे लेट तक चलना पड़ेगा. ओके. सो गुड नाइट फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो.